पूरा शहर के 20 लाख लोग एक भय में जी रहे थे। सर, आपके करियर में ऐसे कौन से केसेस जिसने आप पे कोई एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हो, ये क्या हो गया? स्टोन किलर का एक मैटर था। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है, उनके प्रीमाइसेस में एक हाफ नेकेड आदमी पत्थर से पीछे मार के मर्डर किया गया था। पूरी हमारी पुलिस और 1000 आदमी एवरी डे नाइट में पूरा राजकोट सिटी को सिक्योर करते थे। मीडिया के लोगों ने लिखा इस चीज, क्या ये कहीं स्टोन किलर का, सीरियल किलर का तो काम नहीं है? और वो पढ़ने के बाद सबके हम लोग कान खड़े हो गए। फिर हम लिंक करना चालू किए उसको, और ये चल ही रहा था। उतने में फिर एक तीसरा मर्डर। अब हमारे लिए और चैलेंज बढ़ गया। तो वो हमारा एक ऐसा केस रहा जो कि हम लोग आज भी याद करते हैं, जब पूरी हमारी पब्लिक भय में जी रही थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब कोई क्रिमिनल ऐसा क्राइम करता है, कहीं ना कहीं उसको वो डर निकल चुका है, या डर कम लग रहा है, या डर नहीं लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, कि मुझे कोई ना कोई आके पकड़ लेगा, मुझ पे किसी की नज़र है, मैं बचूंगा नहीं। जो मेंटल ट्रॉमा और इस तरह बहुत सारी चीज़ें कई बार होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो Sir, I just want to take a moment, take a pause, and thank you for what you're doing. Salute, massive respect, sir. आपको सर गुजरात में ऐसा क्या खास लगा, ऐसी गुजरात की क्या खास बातें जो आपके दिल को छू गई और आपने गुजरात को अपना लिया, गुजरात ने आपको अपना लिया? फुल कॉन्फिडेंस और एक रिस्क लेने की कैपेसिटी, तो ये हमारे गुजराती है। और गौरवशाली, गर्वी गुजरात में बोलते हैं कि जय जय गर्वी गुजरात, और उसका ये गुजरात का ये पानी और धरती का प्रताप है। आपे ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની પોલિટિકલ વિલનો ઉલ્લેખ કર્યો, એમની કાર્યશૈલીની શું વિશેષતા છે કે એ ઈચ્છે છે અને થઈ જાય છે? હોમ મિનિસ્ટર સાહેબના જો અભિગમ છે નાર્કોટિક્સ વિરુદ્ધમાં, बहुत क्लियर कट सूचनाओं છે, टॉप टू बॉटम। मतलब जो एकदम कार्टेल जो चलावनार, चाहे देश में कोई जगह बैठा हो, ત્યાંથી લઈને જો પેડલર છે, તો એમાં નાર્કોટિક્સ ખતમ હોવા જોઈએ। ગુજરાતને જ્યાં સતત અમે લોકો જો ટેરર સામે જો ચેલેન્જીસ ફેસ કરેલા છે, ટ્રાન્સ બોર્ડર ખૂબ સારા સ્મગલિંગ થાય, તો એમાં વેપન્સ, ગ્રેનેડ, નાર્કોટિક્સ। સલામ है सर, आप जो कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આજના ખૂબ જ ખાસ એપિસોડમાં। મિત્રો, યુનિફોર્મ્ડ ઓફિસરનું આ મારું સેકન્ડ પોડકાસ્ટ છે, અને જ્યારે સ્ટેચર કમિશનર ઓફ પોલીસ ઓફ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સિટી, નોટ જસ્ટ ઇન ધ સ્ટેટ બટ ઇન ધ કન્ટ્રી, ત્યારે વાતો કંઈ એવી થાય કે જેમાંથી ઘણું બધું જાણવા અને શીખવા મળે। મિત્રો, એક બહુ જ સરસ મજાની વાત મેં વાંચેલી કે કરેજ ઇઝ નોટ ધી એબ્સન્સ ઓફ ફિયર, ઇટ ઇઝ અ કોન્શિયસ ડિસિઝન એન્ડ અ સેક્રિફાઈસ દેટ સમથિંગ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન ફિયર ઇઝ વેઇટિંગ ફોર મી। કે હિંમત એ ડરની એબ્સન્સ નથી, ડરની ગેરહાજરી નથી, પણ ડરની ખાતરી હોવા છતાં એક જાણી જોઈને લીધેલો નિર્ણય અને એક ત્યાગ અને એક બલિદાન છે કે ડર કરતાં પણ વધારે મહત્વનું મારી માટે કંઈ છે। દેશના હરેક પોલીસ ઓફિસર આ નિર્ણયને રોજ જે જીવે છે, અને એવા જ એક ઓફિસર સાથે આજે આપણે બેઠા છીએ। મિત્રો, એમની કારકિર્દીમાં છેલ્લા 28 વર્ષમાં એમને અલગ અલગ પદ પર, અલગ અલગ હોદ્દાઓ પર એવી કામગીરી કરી છે કે એમાંથી એક સિવિલિયન પણ ઇન્સ્પિરેશન લઈ શકે, અને કોઈને લો એન્ડ ઓર્ડરમાં અને લો એન્ફોર્સમેન્ટમાં કરિયર બનાવવું હોય તો એ તો ખૂબ જ વધારે ઇન્સ્પિરેશન લઈ શકે। મિત્રો, આપણે જ્યારે વર્દી જોઈએ ત્યારે આપણને અનુશાસન, કાયદો, ડિસિપ્લિન, આવા બધા વિચારો આવે, પણ એના પહેલે પાર સિવિક ઓર્ડર અને ક્રાઇમ પ્રિવેન્શનના પહેલે પાર પણ વર્દી એક ઓફિસર ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકે, એ આજના ગેસ્ટે કરી બતાવ્યું છે। મિત્રો, હું વાત કરી રહ્યો છું સુરત શહેરના પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમ સિંહ ગેહલોત સર સાથે, અને આજે આપણે એમની કારકિર્દીમાંથી, એમના અનુભવમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું છે, ઘણું બધું જાણવાનું છે। તો ચલો આ સંવાદને શરૂ કરીએ। મારી વિનંતી છે કે આ પોડકાસ્ટ તમે આખો જોજો, આગામાંથી ઘણું બધું જાણવાને શીખવા મળશે। સર, જય હિન્દ, નમસ્તે, કેમ છો સર? બસ મજામાં, આપ મજામાં? એકદમ મજામાં સર। સર, ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ મારી સાથે આ પોડકાસ્ટ કરી રહ્યા છો, મારી માટે ખૂબ જ મોટી વાત છે, અને એસ્પેશિયલી વેન યુ આર ઇન યુનિફોર્મ ઇટ ઇઝ એન ઓનર ફોર મી। અને સર, મને ખૂબ જ રિસ્પેક્ટ છે યુનિફોર્મ્ડ ઓફિસર્સ કે એનીબડી હુ ઇઝ ડુઈંગ અ બેલ્ટ ડ્યુટી। કારણ કે સર, મારું એવું માનવું છે કે એક યુનિફોર્મને પહેલે પાર એક હૃદય ધબકે છે જે નાગરિકો માટે, એમની સુરક્ષા માટે વિચારે છે। તો સર, મેસિવ રિસ્પેક્ટ આપ જે કરી રહ્યા છો એની માટે। સાચી વાત છે। અમે લોકો બી પહેલા એક આ સમાજના એક વ્યક્તિ છીએ પહેલા, અને આ જ્યારે અમે યુનિફોર્મ પહેરીએ ત્યારે પોલીસ ઓફિસર રહીએ છીએ, જ્યારે ઘરે જઈએ છીએ તો અમારે આ જ પ્રકારના સામાજિક જવાબદારીઓ છે, જે પ્રકારના સામાજિક જવાબદારી બધા લોકો છે। તો અમે બી બધા એક પબ્લિકના એક કોમન મેન છીએ જો, લેકિન ખુશી આ બાત છે કે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છીએ જ્યાં 24 કલાક લોકોની સેવા કરવાના આપણે લોકોને તક મળે છે। સાચી વાત છે સર।
સર એક કાયદાના રક્ષક તરીકે, સમાજના રક્ષક તરીકે, કે આમ તો એક સિટીની ક્રાઇમ પ્રિવેન્શનની જવાબદારી હોય એટલે બહુ મોટી જવાબદારી કહેવાય. જ્યારે એ પોઝિશન પર આપ બેઠા છો અને પહેલગામ અટેક જેવી ઘટના વિશે જાણવા મળે અને સાંભળવા મળે સર, ત્યારે કેવા વિચાર આવે, કેવી ફિલિંગ આવે? बहुत दुखद घटना पहलगाम में बनी છે अपना निर्दोष નાગરિકો સાથે. આમાં અમે લોકો બી સુરતમાંથી બી એક આપણા વ્યક્તિને ખોયા છીએ જોઈએ. અને જ્યારે આ બધા આ રીતેના બનાવ બનતા હોય છે, સતત પોલીસ તમામ પૂરા રાજ્ય અને દેશભરના પોલીસ અને અલગ અલગ એજન્સીઝ હરદમ આ જો પ્રયાસમાં રહે છે કે કોઈ આ પ્રકારના અપ્રિય ઘટનાઓ નહીં બને. છતાં જેના આતંક ફેલાવાના છે, જેના કોઈ નિસ્બત નથી જોઈએ કે નિર્દોષ છે, કઈ પ્રકારના વ્યક્તિ છે, બસ ટેરર ફેલાવાના, લોકોમાં ભય ફેલાવાના અને પોતાના ફ્રસ્ટ્રેશન બતાવવાના. તો આ લોકો જ્યારે નિર્દોષ લોકો પર ટાર્ગેટ કરતા હોય છે, ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક અમે લોકો, અમારા લોકોને બી એમાં પરવીમાંથી બહાર નીકળી જાય છે કે આ ઘટના તો કોઈ સોચા બી નહીં હોય અને આ રીતે ઘટનાઓ બની જતી હોય છે. પરંતુ આ ઘટનાના મોટા પ્રત્યાઘાતો પર પડતા હોય છે. લોંગ ટર્મ પોલીસિંગ ઉપર પણ જોઈએ. અને ઘણા બધા આપ જોઈ શકો છો પહેલગામની ઘટના પછી કેટલા મોટો જોઈએ દેશમાં જોઈએ કે એના નિર્ણયો ઉપર જો અસર પડી રહી છે જોઈએ. અને 100% એવા જો આતંકીઓ છે અને એના છે, એના ઉપર તો કડક એક્શન જો અમારી દેશનો જો અલગ અલગ એજન્સીઝ તો લેવાના છીએ જોઈએ, લઈ પણ રહી છે. ઘણા બધા એન્કાઉન્ટર થઈ રહ્યા છે. તો બહુ દુઃખ તો થાય છે, પણ સાથે સાથ અમે લોકો એનાથી શીખીએ પડશે જોઈએ કે આપણી નાગરિકોને સુરક્ષા માટે જોઈએ કોઈ પણ કઈ પ્રકારના લોકો વિચારી શકે છે. ક્યારેક ક્યારેક અમે લોકો જો નથી વિચારતા આ પ્રકારના જો તત્વો છે જોઈએ, જો આ લોકો આ પ્રકારના કૃત્યો કરી નાખે છે જોઈએ, તો અમે લોકો એનાથી વિચારીએ છીએ કે આપના બી આ માનીને ચાલીએ આ પ્રકારના બનાવ બની શકે છે. તો ના બને એના માટે અમે શું પગલાં લેવા જોઈએ, ટીમને કઈ પ્રકારની ટ્રેનિંગની જરૂરત છે, ટીમને એક્સપોઝર કઈ પ્રકારની જરૂરત છે, અને ટીમ શું કરે. પોલીસમાં અમારી પૂરી ટીમ જો કોન્સ્ટેબલથી માંડી સિનિયર અધિકારી તક કે આ પ્રકારના ઘટના અમે લોકો આપણે જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં અમે રોકી શકીએ. સાથોસાથ એકબીજા પોલીસ યુનિટ સાથે સંકલન કરીને ક્યારેક ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળતી હોય, ક્યારે અમે મળે, ક્યારે બીજા રાજ્યોને પોલીસને મળતી હોય, આપણે રાજ્યમાં અલગ પોલીસ યુનિટ્સને મળતી હોય, તો અમારા સંકલન ખૂબ સારી રીતે જળવાય. અને બહુ ખુશીની વાત છે કે અત્યારે ઘણા બધા સારા જો સંકલનના લીધે ઘણી બધી જો અમારા ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટીમાં કાફી પોલીસના અને ફોર્सेसને બહુ સહુલિયત મળે છે. તો આ પ્રકારને એકબીજાના હેલ્પ કરીએ, એકબીજા સાથે ઇન્ટેલિજન્સ શેર કરીએ, આ અમે લોકો કરીએ છીએ. જેના લીધે ખૂબ સારી રીતે જો લોકોને સલામતી જળવાય. અને આ ઘટનાથી ઘણા બધા અમે લોકોને બી શીખવાના મળે. સાચી વાત છે સર. સર ડેફિનેટલી મૃતકોને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ, એમના પરિવાર સાથે આપણી પ્રાર્થના જોડાયેલી છે. અને એક દર્દ તો થાય જ કે આપણા દેશના નાગરિકો સાથે, નિર્દોષ નાગરિકો સાથે આવું બન્યું છે. પણ એની સાથે સાથે આ એક એવી ઘડી છે કે જેમાં આપણે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીને થોડું શીખી પણ શકીએ કે વધારે આ સંગઠનને કેવી રીતે મજબૂત કરી શકીએ અને આવનારા દિવસોમાં કેવી રીતે આપણે લોકોને વધારે સુરક્ષિત રાખી શકીએ. સર હવે હું આવું છું આપની જર્ની પર. 1997માં સર આપે આઈપીએસમાં ઉત્તીર્ણ થયા ગુજરાત કેડરમાં, અને 28 વર્ષ થઈ ગયા સર તમારા કરિયરને. 28 વર્ષમાં તો કેટલું બધું થઈ જાય, રાઈટ? તો સર અગર તમે સંક્ષિપ્તમાં મને તમારી લો એન્ફોર્સમેન્ટની આપની કરિયરની જર્ની મને જણાવી શકો. अपना ग्रेजुएशन में रुड़की में હતા. रुड़की से સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા જોઈએ, જો અત્યારે આઈટી રૂડકી છે. બીટેક કર્યા પછી અમે જ્યારે 3rd યરમાં હતા એન્જિનિયરિંગમાં, ત્યારથી અમે લોકો યુપીએસસીને તૈયારી એકદમ ફોકસ્ડ હતા. અમે લોકો મતલબ અમારા ગ્રુપ જો સાથે હતા કે આપણા યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસમાં અમે લોકો જવા માંગીએ છીએ. એના હિસાબે તૈયારી કરીએ તો અમારા સિનિયર્સ બી ગાઈડ કરે. फिर हमारा इंजीनियरिंग कम्प्लीट थे रुड़की, પછી અમને આઈઆઈટી દિલ્હીથી અમે એમટેકમાં ગયા જોઈએ. અને દિલ્હી તો હબ હતા જોઈએ, ચૂંકि इंजीनियर હતા તો इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो यूपीएससी में जो લેવાના હોય છે એના માટે અને ખાસ કરીને સિનિયર્સના ગાઈડન્સ, ગત વર્ષોના પેપર્સ જો યુપીએસસીમાં પૂછાયેલા હતા એના તૈયારી કરવા માટે જો અમે લોકો, અમારા જો ગ્રુપ હતા, ખૂબ સરસ ગ્રુપ સાથે જો અમે લોકો આપણા એમટેક બી કમ્પ્લીટ થયા અને સાથોસાથ જો તૈયારીઓ અમે લોકો કરતા હતા. તો રાત દિવસ બિના દેખે વગર જોઈએ ત્યારે બધા સિવિલ સર્વન્ટ, જેટલા બી સિવિલ સર્વન્ટ છે બધા લોકોની એક જર્ની હોય છે. જો ડ્રીમ હોય છે, ડ્રીમને પૂરા કરવા માટે અથક મહેનત, અથક પ્રયાસ બધા ફિલ્ડમાં, કોઈ પણ ફિલ્ડ લઈએ તો એની ફિલ્ડ મતલબ નોટ ઓનલી સિવિલ સર્વિસીસ, ભલે કોઈ બી ડૉક્ટર, એન્જિનિયર બનવાના હોય, એને પોલિટિકલ કેરિયર બનાવવાના હોય, બિઝનેસમાં હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કहीं भी जाओ तो મહેનત તો ડેડિકેટેડ અને ઓનેસ્ટ મહેનત की જરૂરત પડે છે.
આ પ્રકાર આપણો સિવિલ સર્વિસીસ બી છે. તો અમે લોકો તૈયારી કરતા હતા, જો એને પહેલેથી ટાર્ગેટ હતા અમારા પોલીસમાં આવવા માટે જોઈએ. તો જ્યારે સિલેક્શન થયા જોઈએ, મેથમેટિક્સ અને સિવિલ એન્જિનિયરિંગ અમારા સબ્જેક્ટ્સ હતા જોઈએ, એના સિલેક્શન થયા તો हमारा क्लोज ग्रुप जो અમે લોકો તૈયારી સાથે 27 જેટલા લોકો હતા. 27 લોકો અમે IAS IPSમાં એક સાથ સિલેક્ટ થયા અને એક સાથ અમે ત્યાં દિલ્હીથી બસ મસૂરી અમારી જો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નેશનલ એકેડમી હતી જો ત્યાં ફાઉન્ડેશન કોર્સ માટે અમે ગયા. તો જ્યારે અમે જોઈએ છીએ કે જ્યારે અમે લોકો ભણતા હતા તો કોઈ દિવસ એવું નહીં હતા કે જો 15-16 કલાકથી ઓછા અમે લોકો પઢાવે. અને એના अपने સાથે ઓનેસ્ટી સાથે કોઈને બતાવવા માટે નથી કે અમે પઢીએ છીએ, બલકે પોતાના માટે કે અમે એટલા પઢીએ છીએ 10 કલાકના આઉટપુટ બી અમે લોકોને મળવા જોઈએ. તો આ અમારા લોકો ગ્રુપ હતા અને ગ્રુપના ખૂબ સરસ મહેનત, એકબીજાના જો ગાઈડ કરવાના, અમુક ક્વેશ્ચન્સ હોય અમે નહીં ખબર પડે, બીજા ખબર પડે, તો કરતાં કરતાં અમે લોકો સિલેક્ટ થયા. એકેડમી ગયા. એકેડમી से પછી અમારી ફાઉન્ડેશન કોર્સ 3.5 મહિના થયા. મસૂરી મહિના પછી નેશનલ પોલીસ એકેડમી અમારી હૈદરાબાદ છે, તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડમીમાં ટ્રેનિંગ અમે લોકો કમ્પ્લીટ કરી જોઈએ. કમ્પ્લીટ કર્યા પછી કેડર એલોટમેન્ટ થાય છે, જો પ્રક્રિયા છે ભારત સરકારની, જો ગૃહ મંત્રાલયની અને DOPTને જોઈએ, એના હિસાબથી અમે ગુજરાત કેડર મળ્યા. ગુજરાત કેડર તો અલગ અલગ કેડરો, કોઈના આસામ, કોઈ ગુજરાત, કોઈ JNK, કોઈ યુપી, બિહાર, અલગ રાજસ્થાન, અલગ અલગ કેડર મળતા હોય. તો હર કેડરના અલગ અલગ ચેલેન્જીસ હોય છે. એક તો અમે લોકો લેંગ્વેજ શીખવાના હોય, જો કેડર મળે એના લેંગ્વેજ ફરજિયાત છે શીખવાના, એક્ઝામ આપવાના. ત્યારે પે ઇન્ક્રીમેન્ટ અમે લોકોને ત્યારે મળે જ્યારે અમે જો લોકલ લેંગ્વેજ છે એમાં અમે એક્ઝામ ક્લિયર કરીએ જોઈએ. તો એના માટે જો બધા લેંગ્વેજીસ અમે જો ગુજરાતી લેંગ્વેજ હતી અમારી, તો હું ચૂંકી યુપીના છું, પ્રયાગરાજના જોઈએ, તો બહુ સિમિલર આપણી લેંગ્વેજ હતી, ઝડપથી અમે શીખવાના મોકા પણ મળી ગયા. તો કેડર એલોટમેન્ટ જ્યારે થાય છે ત્યારે અમારા અલગ અલગ પ્રકારના ચેલેન્જીસ, જો લો એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર તરીકે જો અલગ અલગ ચેલેન્જ હોય, હવે કहीं ઇન્સર્જન્સી હોય, કहीं નક્સલ પ્રોબ્લેમ હતી જોઈએ, कहीं पे जो गुजरात एक एवा स्टेट છે જ્યાં સતત અમે લોકો જો ટેરર સામે जो चैलेंजेस फेस करेला છીએ. बॉर्डर स्टेट थे अपना, और अपना बॉर्डर जो भी છે પાકિસ્તાન સાથે जो હોસ્ટાઇલ બોર્ડર્સ थे જે તે વખતે બોર્ડર पे એટલા ફેન્સિંગ પણ નહીં હતી. જ્યારે અમે લોકો જો 97 में ज्वाइन करे तो बॉर्डर फेंसिंग चैलेंजेस હતી. ટ્રાન્સ બોર્ડર ખૂબ સારા સ્મગલિંગ થાય તો આમાં વેપન્સ, ગ્રેનેડ, નાર્કોટિક્સ તમામ પ્રકારના જો આમાં બી સ્મગલિંગ થાય જોઈએ. तो गुजरात अपने कोस्टल एरिया हमारा 1640 किलोमीटर कोस्टल एरिया, तो एक અહીંયા कोस्टल से भी थ्रेट था, लैंड बॉर्डर से भी थ्रेट था, અને સાથોસાથ जो इंटरनल जो गैंग्स वगैरह जो આ બધા में મદદ કરતી હોય છે, એક એના ચેલેન્જીસ હતા. તો ગુજરાતના લોકો એક જનરલી એક ઇમેજ બનાવે છે કે बहुत पीसफुल स्टेट છે. આ पीसफुल स्टेट બનાવવા માટે जो है गुजरात पुलिस हमारा जो सीनियर्स था, जो हमारे कांस्टेबल तो लઈને हमारे DG तक, जो हमारा पहले गुजरात 1 मई 1960 में જ્યારે બના ત્યારથી જો ચેલેન્જીસ સ્વીકારીને ખૂબ જ મહેનત કરી, જેના લીધે આજના આપણા ગુજરાત પીસફુલ અને વિદાઉટ એની ઓર્ગેનાઇઝ ક્રિમિનલ્સનો જો ગેંગ છે, વિદાઉટ એની ઓર્ગેનાઇઝ ક્રિમિનલ ગેંગ આપણા ગુજરાત છે. તો લો એન્ફોર્સમેન્ટ બી इसी तरह અમે લોકો ધીમે ધીમે આયા, ચેલેન્જીસ ફેસ કરતા કે આજે અમે 27 વર્ષ જ્યારે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, एक बहुत मोटो समय થઈ જાય છે. अलग अलग खूब चैलेंजेस અમે લોકો फेस करा. तो लेकिन खुशी है कि આ एक એવા कैडर છે गुजरात कैडर जो कि इतना प्रोग्रेसिव, इतना हकारात्मक लोगों थी भरेला આ जो स्टेट છે કે જોઈને લાગે છે कि पॉजिटिविटी શું હોય છે अपना गुजरात में हमें જોવા મળે છે. सर, ये सब जो आपने बातें बताई उसमें एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आप IIT से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप IIT दिल्ली में आप जा सकते थे. सर, IIT से पढ़ाई करके सबको पता है कैसा करियर बनता है, करोड़ों की जॉब्स मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां. वो समय पे तो ऐसे ही था कि लाइन में खड़ी रहती थी IIT से ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स को लेने के लिए. तब सर आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे IPS में जाना है, मुझे पुलिस सर्विस में जाना है? ऐसा सर क्या कोई बैकग्राउंड था घर में पुलिस करियर का? मतलब आपने कैसे सोचा कि मुझे पुलिस में करियर बनाना है? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ. उसमें उसका पुराना नाम इलाहाबाद होता था. और एक प्रयागराज एक ऐसी जगह है, गंगा जी, आप अभी महाकुंभ हुआ वहाँ पे, जिसमें 50-60 करोड़ लोग आए स्नान किए. उस शहर की एक खासियत है, वो शहर ने लगभग जो 1500 ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं अभी तक. हर IAS IPS कस्टम इनकम टैक्स में 1500 ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से निकले हैं जो है. और उस शहर की जो एक तासीर जिसको बोलते हैं कि वहाँ पे
आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज में नहीं गए, सिविल सर्विस में नहीं गए तो फिर आप बेकार है। वो एक मेंटेलिटी उस शहर की भी है कि आपको तो जाने जाना है। हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो होती थी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट उसको बोलते थे, जहाँ से मैक्सिमम वो क्रेज ही था कि सिविल सर्विसेज में जाने वाले। तो पूरे हमारे यूपी के जितने भी यूपी अगल बगल स्टेट बिहार वगैरह सारे बच्चे पढ़ने आते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पढ़ने के बाद जो वहीं से तैयारी करते तो वहीं निकलते थे, तो एकदम रूटीन होता था। पेपर्स में आते थे, हम लोग बचपन से पढ़ते थे कि इतने आईएएस बने, इतने आईपीएस बने, इतने इनकम टैक्स में कस्टम गए। तो कंटिन्यूस हम लोग बचपन से एक वो रहा कि करते। फिर घर वालों ने बोला, हमारे घर में किसी का बैकग्राउंड पुलिस में नहीं था, गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, जो है फादर भी थे, ग्रैंड फादर भी थे, सभी लोग थे जो है, लेकिन कभी पुलिस में नहीं रहा। लेकिन वो एक जो क्रेज होता था जो है यूनिफॉर्म सर्विसेज का, जो बचपन से हम लोग देखते थे जो है। और उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी बनती रहती थी जिसमें पुलिस एक्शंस हम लोग देखते रहते थे जो है। यूनिवर्सिटी होने की वजह से हरदम पुलिस के न कुछ एक्शंस होते रहते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे 17 हॉस्टल्स थे जो है, तो उस हॉस्टल में अगल बगल पूरे शहर में हॉस्टल है, तो कभी कभी कुछ वहाँ थोड़ा बहुत कुछ होता था तो पुलिस देखते थे। हम लोग बड़ा एक फैसिनेटिंग एक कैरियर लगता था शुरू से ही। तो वो एक शहर था कि भले हम इंजीनियरिंग करें, चाहे हम डॉक्टर करें, मेडिकल करें, लेकिन हमको जाना था सिविल सर्विसेज में। वो पहले से सोच के बैठे थे। इसीलिए जब इंजीनियरिंग हमारी तैयारी, हम लोग 3rd ईयर में थे, वही चालू किया। और एमटेक हमारा जैसे आईटी दिल्ली से खत्म हुआ, पैरेलली उसके बाद एग्ज़ाम हुआ और सीधे मैं सेलेक्ट हुआ। ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे पुलिस ही मिला और गुजरात जैसा शानदार कैडर। वाह वाह सर, आपने बताया कि प्रयागराज की तासीर रही है कि वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। मुझे लगता है कि प्रयागराज की तासीर है देने की। तो वहाँ से मतलब प्रयागराज ने हमेशा मतलब सदियों से देश को वो शहर देता आया है, और गुजरात को आप जैसा ऑफिसर प्रयागराज ने दिया। बहुत बड़ी बात है सर कि आपने वो टाइम पे ये सोचा कि मुझे पुलिस सर्विस में जाना है। आप चाहे तो कोई भी करियर पाथ चूज मतलब कर सकते थे। आप इंजीनियर थे और बहुत अच्छे इंजीनियरिंग होंगे, आप आईआईटी में थे सर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है सर। मैं आपके काम के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले एक और सवाल। जब आपको गुजरात कैडर मिला, आपने बताया कि लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, इट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर द इंक्रीमेंट। सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो दिल्ली के हैं, जो यूपी के हैं, जो मुंबई से, महाराष्ट्र से है सर, वो सबको गुजराती लैंग्वेज बड़ी स्वीट लगती है कि वो बोलने में मज़ा आता है। वो मतलब एक वो गुजराती में कहे तो पोती कोनो भाव आवे कि आपड़ी है, ये हमारी लैंग्वेज ही है, ऐसा लगता है। सबको समझ में भी आती है। सर आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने गुजराती सीखना शुरू किया? तब आप क्या सोच रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? एकेडमी में, जो पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हमारा आप सीखते हैं, तो एक छोटा सा वहाँ पे एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो उसमें एग्ज़ाम्स हुआ तो पर्यायवाची, उसको बोलते हैं अपोजिट जो है वर्ड्स को यूज़ करना था। तो उसमें एग्ज़ाम में है कि उसमें जैसे बोलते हैं नाना भाई, मोटा भाई यहाँ बोलते हैं ना जो है। तो मोटा भाई पूछा कि मोटा का मतलब, मोटा के सामने अपोजिट क्या होगा? तो पतला लिखा हम लोगों ने जो है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखते गए पूरा। तो उसमें ऑब्वियसली जो हम लोग को वो समझ में आया कि भाई नाना भाई ने मोटा भाई ये होता है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स अपने होते थे। फिर उसके बाद देखा तो हमें जनरली क्या होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये 3 सर्विसेज जो हैं भारत सरकार की हैं, जिसमें ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये 3 में कैडर अलॉटमेंट होते हैं। तो हम स्टेट को भी सर्व करते हैं जो हमारा कैडर होता है, और हम सेंटर को भी डिप्यूटेशन पे सर्व करते हैं। दोनों जगह सर्व करते हैं। इसीलिए अखिल भारतीय सेवा बोली गई, जो हमारे देश के जो सबसे दूरदृष्टा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, उनके द्वारा बनाई गई थी 1947 में, कि दोनों जगह सेवा करें, जिससे हमारा अखंड भारत का जो है कॉन्सेप्ट रहे। तो उसमें ही उसके अंदर ये एक इसका भी समावेश होता है कि हमें जो भी कैडर कंट्री मिलेगा, हमें जहाँ भी भारत सरकार बोलेगी आपको वहाँ नौकरी करना है, तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के धीमे धीमे संस्कार भी हम सीखे जाते हैं। हमारे कुछ बैचमेंट तमिलनाडु गए तो तमिल सीखे, कुछ आंध्रा गए तो तेलुगु सीखे जो है, आसाम गए तो असमी सीखे, गुजरात आए तो हम लोग गुजराती सीखे जो है, कुछ हमारे साउथ के जो हमारे बैचमेंट थे जो यूपी आए थे हिंदी सीखा उन्होंने। तो यही एक अखिल भारतीय सेवा की खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ का एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, और फिर उसमें हम सर्व करते रहते हैं। और यही एक सबसे बड़ा हमारी स्ट्रेंथ है ऑल इंडिया सर्विसेज की, कि जो हम पूरा देश को एक अपना एक मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं, और उसको जोड़े रहने के लिए। आज मैं आपसे बात करूं कि मैं गुजरात में हूँ, आजकल तो आपको पता है क्रिमिनल भी ग्लोबल हो रहे हैं। यहाँ क्राइम के भाग के छत्तीसगढ़ चले गए, मान लीजिए तमिलनाडु भाग गए जो है, या तमिलनाडु के यहाँ से भाग के यहाँ पे आ गया,
बंगाल के यहाँ भाग गए, यहाँ से बंगाल। तो जो हमारे बैचमेट्स होते हैं, जो इस सर्विसेज से खासियत है ये कि हम सीधे उनको बात करते हैं, भाई हमारी पुलिस आ रही है और तुम्हारे यहाँ से क्रिमिनल लाना, तुम मदद करो अपने पुलिस को। और सर ये कोऑपरेटिव रहते हैं सर बहुत ज्यादा, तभी तो बताया ना उस देश की सर्विस की खासियत है कि हम लोग एक साथ, हमारे जूनियर सीनियर। आज कोई लेह लद्दाख में भी कोई थाने में अगर हम फोन करें और उसको हम बताएं कि मैं सूरत से ये पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए, तो वो सामने से पूछेगा भी नहीं कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वो सीधे एकदम मदद करने लगेगा। उसी तरह उसका फोन आएगा। तो ये जो एक भावना एक दूसरे को मदद करने की, यूनिफॉर्म में हमारा इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष होता है, वहां से लेकर सीनियर अधिकारी, हम लोग कभी कन्फर्म भी नहीं करते, इतना विश्वास एक दूसरे के ऊपर है। और बाद से पता भी चल जाता है कि पुलिस वाले ही हैं जो है। तो इतने हम लोग मदद मिलती है एक दूसरे के साथ करने का। तो ये जो सर्विस है जो पटेल साहब ने बनाई थी जो है, उस सर्विस का ये है कि एक दूसरे सारे स्टेट यूनिट्स में कोऑपरेट करते रहना। भले अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग हम लैंग्वेज बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, करते हैं, उनके बात करते हैं, लेकिन उन सारे क्रिमिनल्स को लाते हैं। प्लस उनसे रिक्वेस्ट भी कई बार करते हैं कि आप जरा इसको इंट्रोगेशन में ये पॉइंट पूछ लेना, क्योंकि कई बार हम लोग, मान लो फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा से है कोई क्रिमिनल है, तो उड़िया हमें नहीं पता है जो है, तो कैसे करना, तो उसको बोले तो ये हमारा क्वेश्चन है, जरा तुम पूछ के बताना। तो वो हम फटाफट करके बताया था भाई ये इसमें फैक्ट है। तो ये एक दूसरे से भारतीय पुलिस ऐसी जुड़ी हुई है कि देश के किसी एक कोने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सब लोग उस प्रॉब्लम को एक बार सोचते हैं, विचारते हैं और कैसे क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में थिंकिंग तो जरूर करते हैं उसमें। सर अभी तो आपने गुजरात में 27 साल बिता दिए, आपको सर गुजरात में ऐसा क्या खास लगा है, ऐसी गुजरात की क्या खास बातें हैं जो आपके दिल को छू गई और आपने गुजरात को अपना लिया, गुजरात ने आपको अपना लिया? क्या खास है गुजरात में? मैं यूपी मेरा नेटिव है और हम तो यही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी यूपी से आके गुजरात में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, द्वारकाधीश की तरह के यहाँ पे रहे। तो कुछ चीज़ धरती में उस समय भी था, आज से 5000 साल पहले भी इस धरती में था कि भगवान खुद यूपी से यहाँ पे आए थे और यहीं पे राजधानी बनाई। तो इतनी खुशी की बात हमें कि मैं भी यूपी से एक कॉमन ऑफिसर तरीके आए यहाँ पे। और हरदम जो कृष्ण भगवान से प्रेरणा भी हमें मिली जो है कि जो आए यहाँ पे, तो हमारी पुलिस एकेडमी उस समय जूनागढ़ होती थी, एकेडमी नहीं थी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी जूनागढ़ होती थी। फिर वहाँ पे हम लोग 1.5 महीने का लैंग्वेज के लिए लोकल लॉज होते हैं, जैसे हमारा प्रोविजन एक्ट है, वो हमारा लोकल एक्ट था गुजरात का जो है। इन एक्ट के लिए हम लोग वहाँ पे 1.5 महीने ट्रेनिंग होती है। तो उस समय बगल में मैं घूमने का मौका मिला, भगवान को दर्शन किया, सब देखा जो है, संस्कार देखा, कल्चर देखा जो पूरा। तो सौराष्ट्र बोलते थे, वो सौराष्ट्र एरिया था जो है, सौराष्ट्र वाला एरिया था। यहाँ गुजरात का अपना अलग एक कल्चर, साउथ गुजरात अपना अलग है, नॉर्थ गुजरात अलग है, मध्य गुजरात, सबका कल्चर अलग है। तो मैं जब ये घूमना चालू किया तो लोगों का जो प्यार और जो मिठास थी भाषा में जो है, उस समय बहुत कम हम लोग गुजराती समझ पाते थे जब जूनागढ़ में थे। लेकिन जूनागढ़ में जो बोलते थे, इतना प्यार से बोलने का और प्यार से बोलने और खिलाने का, और खाने में खूब तेल डाल के खूब तेल डालते थे। तो एक बार हम लोगों ने पूछा भाई कि इतना तेल क्यों, तो बोला कि हम अपने गेस्ट को जो है कभी ये नहीं फील होने देते कि उसकी जो है, जो हमें सेवा करने उसमें कोई कमी रह गई। तेल हम इसलिए भी डालते हैं कि अपना अच्छा से अच्छा खाना बनाएं और अपने गेस्ट को अच्छे से खिलाएं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें तो हम लोग को ऐसा लगा कि क्या शानदार स्टेट है ये, और भगवान कृष्ण तो आए लेकिन ये स्टेट के लोग कितने अच्छे हैं जो है। फिर जैसे जैसे नौकरी हमारी आनंद में ट्रेनिंग हुई, फिर तो आनंद डिस्ट्रिक्ट मध्य गुजरात का एक सबसे प्रॉस्परस चौहत्तर एरिया आनंद होता था, जहाँ मैक्सिमम जो NRIs होते थे। वहाँ पे देखने को मिला, अमूल को देखने को मिला हमें, जो कोऑपरेटिव भावना हमने देखा। क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश में भी यूपी से आया था, लेकिन यहाँ पे देख गांव गांव में डेयरियाँ, घंटी बज रही, सायरन बज रहे हैं, लोग दूध लेके आ रहे थे। वो सब एक अद्भुत जो नज़ारा शुरू में 98 और 99 में हम लोग देख रहे थे उसमें। उस समय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ये सब कोई चीज़ होती नहीं थी और इंटरनेट वगैरह भी ऐसा कोई बहुत एक्सेस भी नहीं था। तो वो जो चीज़ें हम लोग फिजिकली देखते थे कि हमारी जो बातें होती थी, हम जाके डेयरी में बोलते थे कि भाई अभी ये पुलिस की तरफ से हम ये सूचना देना चाहते हैं, तो डेयरी में जब शाम को आपको सब दूध देने आएंगे तो ये सूचना आपको देनी गई है वहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा जगह एक ही साथ सूचना देने का जो गुजरात में कोऑपरेटिव एक भावना थी यहाँ पे, तो वो देखा हमने। फिर उसमें डांग का SP बन के गया। तो जब डांग में गया तो वहाँ डांग का अलग एक डायलेक्ट थी, डांगी डायलेक्ट, एकदम खूबसूरत स्वर्ग जैसा अपना ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, पूरा पहाड़, बारिश में तो स्वर्ग ही है जो है। हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की लैंग्वेज हमें सीखना था,
तो डांगी लैंग्वेज अलग थोड़ा डायलेक्ट बोलते हैं। यस। फिर वहाँ से मैं महसाणा एसपी बन गया, महसाणा से भावनगर आया, तो महसाणा गया तो वहाँ नॉर्थ गुजरात की भाषा अलग, और फिर वहाँ का अलग कल्चर, वहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलने वाले लोग। राइट। भावनगर गया, वहाँ एसपी में 3.5 साल रहा 2 बार, तो भावनगर में देखा, फिर सौराष्ट्र वाला एरिया हुआ, तो वो फिर पूरा अलग अलग घूम, भावनगर से फिर बड़ौदा, अहमदाबाद, फिर करके राजकोट पुलिस कमिश्नर गया, फिर बड़ौदा पुलिस कमिश्नर बन के आया, फिर सूरत आया। तो इतनी जगह हमने एक चीज़ देखा जो है कि एक तो हमारे गुजरातियों को बहुत गौरव है अपना गुजराती होने पे, या और गौरव होना भी बेशक। चाहिए, इसलिए गौरव है कि हरदम देश के लिए सोचना, और देशभक्ति और यूनिफॉर्म सर्विसेज को जब ये देखते हैं तो इतना इनके रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्म सर्विसेज हमारी जो आर्मी हो गई, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, पुलिस हो गई, तो इनको हमने देखा कि कुछ भी करने के लिए रेडी है अपने आर्म फोर्सेस के लिए और देश के लिए। तो ये शुरू में आसाम वगैरह घूमने गए, 2000 के बाद मैं बता रहा हूँ, ये लोग ट्रिप जाया करता था, कामाख्या माता के दर्शन किया, शिलोंग घूम के आए। आने के बाद ये मुझसे मिलते तो पूछते थे कि सर हम वहाँ आसाम गए तो उनके पास तो बहुत पुलिस है, अपने गुजरात में इतनी पुलिस क्यों नहीं, वहाँ तो बहुत पुलिस दिखती है। हाँ। मतलब उनको ये पता नहीं था कि वहाँ पे उस समय इंसर्जेंसी, उल्फा वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी, तो ज़्यादा फोर्सेस हर जगह रहती थी। राइट। तो इनोसेंटली हमसे पूछते थे, तो हमने बताया कि नहीं ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे, हम लोग को इतने चैलेंजेस नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए है। तो बोलते सर हम लोगों ने देखा, आर्मी में गए, आर्मी में सीधे पहुँच गए, उनके पोस्ट पे बताया हम गुजरात से आए हैं, हमें बहुत आप लोगों पर सैल्यूट हमने किया, तो आर्मी वालों ने हमें चाय पिलाया करा। तो मतलब जो एक तो फ्रैंकनेस है, कभी हमारा गुजराती कभी हेजिटेट नहीं होता कहीं भी। आज यूएस में सब जगह भले हमको इंग्लिश नहीं पता हमारे गुजराती को, लेकिन वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस बात करेगा वहाँ पे, तो इतना दिल से बात करेगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है। तो हमने ये देखा, यही चीज़ हम लोगों ने एक तो सीखा कि एक दूसरे को मदद करने की भावना, जो कोऑपरेटिव भावना है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना, फुल कॉन्फिडेंस और एक रिस्क लेने की कैपेसिटी, ये चीज़ हम लोगों ने जो सीखा, ये चीज़ मैं सभी को बोलता हूँ, अपने बैचमेटों को, अपने यार मित्रों, जो जहाँ उनको बोलता है कि हमारे गुजरात की ये खासियत है, और उसका ये गुजरात का ये पानी और धरती का प्रताप है, भगवान कृष्ण की धरती है, उनकी धरती है, स्वामीनारायण भगवान की धरती है, बहुत सारे यहाँ पे संत साधु महात्मा हुए, हमारे गिरनार की धरती है, चारों तरफ जो अम्बा माता यहाँ पे है हमारी जो है, उनके पावागढ़ में जो हर दम माता जी लोग का आशीर्वाद है जो है, और लोग इसी वजह से यहाँ के हमारे लोग और बहुत ही अच्छे लोग हैं। और चूंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं पाटन एसपी था, तो 2009 में उस समय कच्छ हमारी बॉर्डर रेंज होती थी, कच्छ हमने देखा, उसके बाद जो है भावनगर में देखा, पानी क्राइसिस देखा है, पानी कैसे आती थी, टैंकरों में पानी लाना, पानी के लाइन लगाना, कितने फाइटर लोग थे कच्छ में, तो उसमें कुछ भी नहीं था, इतना फाइटर लोग थे कि आज वो जो फाइटिंग की जो उनकी कैपेसिटी थी, आज अपने गुजरात को कहाँ पे ला कर रख दिया है जो है। तो ये हमारे गुजराती है, और गौरवशाली, गर्वी गुजरात में बोलते हैं कि जय जय गर्वी गुजरात, इससे बोलते हैं कि अपना, और ये चीज़ सब आदमी एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये कहीं भी पहुंच जाएंगे, किसी भी कोने में देश में पहुंच जाएंगे, और कभी भी किसी चीज़ों से पीछे नहीं हटने वाला अपना। सर, गुजरात के बारे में बात करते करते आपके चेहरे पे मुझे एक चमक दिख रही है, मतलब ये दिल से निकलती हुई बातें लग रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने ओपनली गुजरात के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई। आपने जूनागढ़ का जिक्र किया सर, मेरी जन्मभूमि है जूनागढ़, और हमारे काठियावाड़ में एक कहावत भी है जो जहाँ पे हम कृष्ण भगवान को संबोधित करके कहते हैं कि आप एक बार यहाँ पे आके खो जाइए, आपको स्वर्ग बुला देंगे। तो ये वो गुजराती की अपना ही भावना जो है। सौराष्ट्र बोलते हैं कि मेहमान नवाजी यही है, हाँ, कि भगवान भी अपना घर भूल जाएंगे। डेफिनेटली। सर, मैं अब आपके काम पे आता हूँ, और एक पुलिस ऑफिसर का काम सर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी जिनके साथ आप डील करते हैं, जो सिविलियंस को शायद पता भी नहीं कि वो कितना गहरा और कितना डार्क वो वर्ल्ड, वो दुनिया हो सकती है। सर, आपके करियर में, 27 साल के करियर में, ऐसे कौन से केसेस जिसने आप पे कोई एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हो, या ऐसे केसेस जो सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी रही हो, या ऐसे केसेस जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया कि ये क्या हो गया? अगर आप कुछ केसेस शेयर कर सके तो। पुलिस 27 साल में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हुए जो बहुत चैलेंजेबल केसेस थे, और लेकिन मैं शायद आपको, एक राजकोट में सीपी था, एक सीरियल किलर का जो है, स्टोन किलर एक का मैटर था जो है, कि कई बार क्या होता है कि ऑफेंस बनते हैं जो है, क्राइम होते हैं, लेकिन क्राइम तो लिमिटेड लोगों को अफेक्ट करता है वो,
जो विक्टिम्स होते हैं उनकी फैमिली को, उस आसपास के रहने वाले लोगों को, सोसाइटी में एक डर का माहौल होता है, तो इस तरह बनते हैं। लेकिन राजकोट में एक ऐसा केस था कि अब चूंकि ट्रायल भी चला, उसमें सजा भी हुई जो है, एक स्टोन किलर का एक मैटर था। जनरली पुलिस मैं हरदम ये बोलता हूँ इस बात को, अपने सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोलता हूँ कि जो मीडिया के हमारे जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं उनसे भी सीखने का बहुत मिलता है हमें। जैसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो जब हमारे पास बम्बार्डमेंट होते हैं क्वेश्चंस के जो है, तो वो हमारे लिए आगे हमारे लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं कि मीडिया में 10 लोगों ने 10 तरह क्वेश्चन पूछा। तो मैं सबको बोलता हूँ कि हरदम इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना कि उन्होंने जो जो प्रश्न उठाए हैं, इस प्रश्न को उस लाइन पर हमें देखना है। तो राजकोट में 2016 की बात है, और अप्रैल मई का महीना था जो है, उसमें रेलवे की प्रीमाइसेस, जो रेलवे जीआरपी होती है, जो उनके गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है, उनके प्रीमाइसेस में एक पत्थर मार के डेड बॉडी मिली, स्टोन से किल किया था, स्टोन बगल में पड़ा था। तो जल्दी क्या, तो रेलवे की हाथ होती है, तो लोकल स्थानिक पुलिस को ऐसा लगता है भाई रेलवे की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे, जैसे आपने पूछा कि डार्क साइड वाला, ये बहुत सारे हमारे पुलिस में ऐसे हमारे कांस्टेबल्स हैं और ऐसे हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो कि पब्लिक में कभी नहीं आते। वो रात दिन काम करते रहते हैं, डिटेक्शन के लिए लगे रहेंगे, टेक्निकल चीज़ें देखते रहेंगे, पुराने लोगों को ढूंढते रहेंगे, कितने लोग वांटेड है, उनके पीछे लगे रहे। वो कभी मीडिया में कभी हाईलाइट नहीं होते। वो पर्दे के पीछे काम करने वाले हमारी टीम होती है, और सेल्फ मोटिवेटेड हमारे लोग होते हैं वो, जिसके वजह से सोसाइटी वो प्रिवेंट करते रहते हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस को प्रिवेंट करते रहते हैं जो है। और जो डिटेक्ट करते रहते हैं वो लोगों को दिखते रहते हैं, कुछ बनाओ जाके उनको डिटेक्ट किया, लेकिन प्रिवेंट करने वाले जो टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो एक घटना बनी जो है, घटना बनने के बाद कुछ ऑफिसर ने रेलवे के ऑफिसर्स कांटेक्ट किया, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी, थोड़ा बहुत जो कॉल डिटेल्स वगैरह निकालना, कब क्या हुआ था, बनाओ अगल बगल, क्योंकि जनरली कोई भी होता है सिटी से ही जाता है, सिटी का से रेलवे के प्रीमाइसेस में जाता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा मदद किया, और वो फिर रेलवे ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, हो गया। कुछ दिन के बाद दोबारा एक सेम मोरलेस सेम पैटर्न से एक डेड बॉडी राजकोट सिटी में मिली, कि उसका हाफ नेकेड आदमी, और पत्थर से, और फेस नीचे था, उसके पत्थर से पीछे मार के मर्डर किया गया था जो है। तो जब ये दो सिटी में मिली, तो सिटी का तो पहला केस था, उनका अलग केस था अपना रेलवे का। तो ये जनरली सिटी ने अपने हिसाब से उसको एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन चालू किया। लेकिन वो मीडिया के लोगों ने लिखा इस चीज़ को कि क्या ये कहीं स्टोन किलर का, सीरियल किलर का तो काम नहीं है, वो एक आर्टिकल आया इसे। अब किसी हमारे क्राइम रिपोर्टर फ्रेंड ने लिखा इस चीज़ को जो है, और वो पढ़ने के बाद सबके हम लोग कान खड़े हो गए। फिर हम लिंक करना चालू किया उसको, कि पैटर्न देखा कि दोनों इंडिविजुअल अलग अलग, एक अलग ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है, राइट। तो वो हम लोगों ने देखना चालू किया, तो लगभग पैटर्न एक जैसा लगा। अब हमारे लोग कान खड़े हो गए, भाई ये तो अब स्टोन किलर, कोई सीरियल किलिंग का मैटर आ रहा है जो है। और ये चल ही रहा था, उतने में फिर एक तीसरा मर्डर हुआ। अब उसके बाद अर्ली मॉर्निंग के लगभग लेट नाइट 3-4-5 बजे के आसपास की घटनाएं होती थी। और राजकोट एक ऐसा हमारा शहर था कि मॉर्निंग वॉकर्स का पूरा भरमार रहती थी, हर एरिया में मॉर्निंग वॉकर थे। अब लोगों में इतना भय फैल गया, पहली बार हम लोगों ने फील किया कि लोगों में इतना भय कि लोग मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद करते। कोई मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाए, निकले तो 10-20 के ग्रुप में डंडे लेके निकले। अच्छा। क्योंकि जब ये रिपोर्टिंग भी मीडिया में आने लगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में, भाई इस तरह से जो स्टोन किलर राजकोट में जो प्रवेश किया, लोग सावधान रहे, इस तरह बहुत सारी चीज़ें, लोग अलग अलग स्टोरीज आने लगी। और ये बात भी सही थी। फिर उसी में एक के ऊपर अटेम्प्ट हुआ, वो बच गया, वही बच गया, तो उसके थ्रू हमें थोड़ा बहुत फेस का स्केच मिला, हम लोगों ने स्केच बनाया। उसके बाद लगे सीसीटीवी, उसमें इतना नेटवर्क था ही नहीं राजकोट में, लिमिटेड नेटवर्क थे जो है। तो वो कुछ लोगों के जो घरों पे कैमरे लगे थे, उसमें कुछ हमें थोड़ा बहुत आउटलाइन मिलती थी, अच्छी क्वालिटी कैमरे नहीं होते थे। फिर उसके बाद फिर एक मर्डर हुआ जो है। तो जब इस तरह 3-4 मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर, तो ये हालत हो गई कि 1.5 महीना तक ये सब चीज़ें चली। और 1.5 महीना में लोग निकलना बंद कर दिए। लोग स्केच जब हमने बाहर जारी किया, तो स्केच के से मिलते जुलते लोगों की पिटाई भी लोगों ने चालू किया कि ये स्टोन किलर, इसको पीटो, इस तरह की घटनाएं। अब हमारे लिए और चैलेंज बढ़ गया कि एक तो घटना ना हो, दूसरा कोई इनोसेंट को कोई मारे भी नहीं जो है। और इस तरह की चीज़ें लेके पूरी हमारी पुलिस फोर्स 1000 आदमी एवरी डे नाइट में पूरा राजकोट सिटी को सिक्योर करते थे, नाइट भर दौड़ते थे, कहीं कोई घटना ना बने। और
जैसे रात को कोई फ़ोन बजे, अर्ली मॉर्निंग फ़ोन है, तो हम लोग का हाथ पाँव फूल जाते थे पुलिस के, कि फिर कहीं कोई शहर इतना बड़ा था, कहीं कोई घटना ना हो जाए। तो वो चलता रहा। और लेकिन मैं एक ही चीज़ मैं हरदम सभी को बोला कि हमारी जो पब्लिक थी राजकोट की, उनको हम लोग रिक्वेस्ट किया, उन्होंने देखा भी कि पुलिस बहुत मेहनत कर रही है। एक भी आदमी कभी कोई डेलीगेशन लेके नहीं आया कि राजकोट में कायदा ने व्यवस्था की स्थिति ये हो गई, हमें डर है, भय है, हम ये वो जैसा आंदोलन, ये सब, एक भी आदमी नहीं। वो जो 1.5 महीना लोगों ने कोऑपरेट किया, जो हम लोग लाइफ का एक वो अनुभव मिला, उनके कोऑपरेशन के वजह से हमारी पूरी पुलिस कंसंट्रेट कर रही थी इसको पकड़ने के लिए। अदरवाइज क्या होता कि आंदोलन हो रहे हैं, रोड डेलीगेशन आ रहा है, तो आधी Right. पुलिस तो हमारे उसी में, क्योंकि हम Right. तो एक ही व्यक्ति हैं, हमको डिटेक्ट Right. भी करना है, लॉ ऑर्डर भी संभालना और लोगों को सुनना भी है। राइट। तो वो चीज लोगों ने, एक भी लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बदौलत फिर हम लोगों ने जामनगर से रेलवे स्टेशन से पकड़ा। वो भी इतना, मतलब ऐसा केस था कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी इतनी मेहनत, बिना सोए हुए करीब 15-20 दिन के मेहनत पे भगवान के आशीर्वाद से। सर कैसे पकड़ा गया, अगर आप बता सके तो? जनरली क्या, हम लोगों ने कुछ इनाम भी घोषित किया, स्केच जारी किया, और एक उसके अंदर जो है ये जो था अपना छोटा सीसीटीवी कैमरा था, वो केरी मार्केट थी, आम की मैंगो आम मार्केट की थी। मार्केट, हाँ। तो जल्दी आम के मैंगो मार्केट में आम बिकने के बाद उसका जो पैक करने के लिए प्लास्टिक के थ्रेड्स वगैरह जो पेटी बांधने में यूज होती, कुछ पड़े हुए थे वहाँ पे। तो ये अपने टारगेट को लेके जा रहा था, मतलब ये थोड़ा सा होमोसेक्सुअल था, अच्छा। तो ऐसे टारगेट को ढूंढता था। तो कोई वो दोनों लोग जा रहे थे, पीछे पीछे ये, तो आगे आगे वो इनका टारगेट था। चलते साथ चलते चल रहे, तो ये फिर रुक के उठ के नीचे ये झुका, और वो डोरी उठाने के लिए, उसको स्ट्रैंगुलेट वगैरह करने के लिए उसने प्लास्टिक की डोरी उठाई। तो वो उठाई, उससे भी सामने एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था, छोटे वाला एकदम सीसीटीवी कैमरे होते हैं। तो ये उठाया, रुका, उठा, फिर चला, तो उतने में उसकी जो हमें आउटलाइन फेस की मिली। राइट। नाइट था तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी भी नहीं थी, कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेकिन एक वो मिले, प्लस उसको चलने के एक अलग स्टाइल था, हाथ को फेंकते हुए, हाथ फेंक फेंक के चलने का। एक इस तरह के लोग होते हैं, उनका कुछ फिजिकली डिफॉर्मिटी टाइप के भी कुछ अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है। राइट। तो वो फेंक फेंक के हाथ चलता है, वहां से निकला, वो हमको मिल गया। स्केच, एक जो आदमी जो बच गया था, उसने एक स्केच बनाई, उसको भी पत्थर मारा था, तो स्केच उसने बनाई, एक स्केच मिल गया, ये मिल गया। और एक हमें जो मारने के बाद जनरली लोगों को पर्स वगैरह भी ले लिया करता था, जो पैसा वगैरह, तो एक किसी एटीएम कार्ड विक्टिम पे लेके कुछ पैसा निकालने की कोशिश किया होगा, नहीं हुआ, तो उसमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, और हेल्पलाइन नंबर पे विद द ग्रेस ऑफ गॉड सारी रिकॉर्डिंग होती है। अगर आप कुछ कंपनी से हेल्प मांगते हैं, तो वो जो भी आपसे उनका जो अटेंड करते हैं आपको जो है, वो सब रिकॉर्डेड होता है। तो उस कॉल मोबाइल जो विक्टिम का मोबाइल से यूज करके बात हुई थी, तो विक्टिम के मोबाइल से जो हम लोगों ने निकाला, तो उसमें एक 1800 इस तरह के जो इनकी हेल्पलाइन होती है, उसमें से मिला, तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग मिल गई। तो वॉइस रिकॉर्डिंग हमें मिल गई, क्योंकि पुलिस तो कुछ ना कुछ धूड़ी लेने वाली थी। वॉइस रिकॉर्डिंग स्केच मिल गया, और ये 3 मिल गए। उसको लेके हम लोगों ने मैसिव पब्लिसिटी चालू किया, कैमरेज देखने लगा, फिर बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें उसमें हुई। उसके बाद से ये पता चला कि ये व्यक्ति डाउटफुल, ये व्यक्ति है। उस व्यक्ति के पुराने नंबर्स मिले, भी हम लोगों को देखा कि उसको जामनगर में लोकेशन होती थी, रेलवे स्टेशन के आसपास। तो पूरी टीम हमारी गई, एक भरत राठौर भी था उसमें टीम में, जो हमारा जो अभी डीसीपी है अहमदाबाद में, पूरी टीम हमारी गई वहाँ पे। जब एक हर्षद मेहता, हमारे जूनागढ़ एसपी जो अभी तक थे, जो अभी वीआरएस ले लिया, वो भी हमारा एसीपी था, ये लोग सब गए वहाँ पे। और उस हाथ पे चलते हुए स्टाइल, वो सामने से शॉर्ट में मैं बताऊँ आपको, तो ऐसी पर्सनालिटी जो होती है, उनको लगता है कि क्रेडिट मैं ही लूंगा, मैं स्टोन किलर हूँ, मेरा क्रेडिट कोई और ना ले। उसी समय हमारे राजकोट रूरल में एक स्टोन मार के एक दूसरा मर्डर हो गया। वो आपस में कुछ झगड़ा उगड़ा, वो बेंच पे बैठने के लिए पत्थर मारा, वो मर गया। वो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि स्टोन किलर राजकोट ग्राम तक पहुंचा। तो उसी दिन हम लोग को डाउट हुआ कि ये आदमी, और वो डिटेक्ट भी हो गया, रात में डिटेक्ट भी हो गया किसने मारा उसको। लेकिन ये अगले दिन पेपर में रिपोर्टिंग से पहले लेट नाइट डिटेक्ट हुआ, तो पेपर में वो रिपोर्टिंग नहीं आई थी। इतनी है कि स्टोन किलर वहां तक पहुंचा। तो ये आदमी कंफर्म नेक्स्ट डे जो है निकलेगा, प्रूव करने के लिए कि मैं अभी पकड़ा नहीं गया हूँ, डिटेक्ट नहीं हुआ, मेरा क्रेडिट मैं एक और मर्डर करूंगा। और वो जामनगर, चूंकि हम लोग पहले से कुछ डाउट हो रहा था, स्टेशन पकड़ के ट्रेन से आता है और फिर निकल जाता है। राइट। तो वहां पर हमारी टीमें 24 घंटा से बैठी हुई थी। 23 घंटा हो गए, 24वां घंटा में टीम इम्पेशेंट हो गई, बिना कोई ब्रश किए हुए, बिना कुछ खाए पिए हुए, चाय पी के वहीं पे सब झब्बा कुर्ता पहन के बैठी रहती थी पूरी टीम।
सामने से वो ट्रेन पकड़ने 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए हाथ चलने के स्टाइल से आया और सीधे उसको जो है टीम ने उठाया। जैसे उसको गाड़ी में बैठा उसने सीधे बोला कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, मतलब उसके मन में जो चल रहा था। हाँ, और फिर वो सारे क्राइम पेट्रोल देखने का, इंडिया मोस्ट वांटेड, इस तरह के सीरियल देख देख के वो सेल्फ जो है इस तरह अपने आप को जो पुलिस से कैसे बचें, वो उस तरह से आइडिया निकाल के मर्डर कहीं करेगा, मोबाइल कहीं और डायरेक्शन फेंकेगा, जाएगा कहीं और, लेकिन पुलिस इज द पुलिस। कोई भी क्रिमिनल हो एक क्लू छोड़ता ही है और वही क्लू हमको पकड़ना होता है। और आज तक पूरे कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी जो पुलिस होती है वो ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढी लेती है, चाहे जितना कोई चालाक हो वो पकड़ा जाएगा। तो वो एक ऐसा केस था कि जिसमें पूरा शहर के 20 लाख लोग एक भय में जी रहे थे और 1.5 महीना 1-2 दिन नहीं, और उनको भय से निकालना, डिटेक्ट करना और उसके बाद जो है लोगों का इतना सहकार लेना, कोई निर्दोष भी नहीं पिटे जो है, इतना करने का पहला ऐसा केस हुआ था जो उसमें पूरी हमारी टीम जो है ने किया। और उसमें मुख्यमंत्री साहब और हमारे गृह मंत्री साहब, डीजी साहब, इन सब लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया था जो है पूरी टीम को जो है। तो वो हमारा एक ऐसा केस रहा जो कि हम लोग आज भी याद करते हैं, जब पूरी हमारी पब्लिक भय में जी रही थी। राइट सर, ऐसे क्रिमिनल्स की क्या मानसिकता हो सकती है? जो आपने बताया सीरियल किलर है, उनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, बट उसको क्रेडिट भी लेना है, उनको पुलिस को मिसलीड भी करना है, उनको स्मार्ट भी प्ले करना है, उनको अल्फा भी प्ले करना है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो गया सर। तो ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है, क्यों ये क्राइम करते हैं? अगर बिकॉज आपने जनरली हम लोगों ने ऐसा देखा है कि ऐसे मैटर्स में कुछ बचपन में बहुत सारे ऐसे कुछ घटनाएं इनके साथ बनती हैं। इस केस में भी ऐसे ही था कि बचपन में काफ़ी ज़्यादा ये सेक्सुअली अब्यूज हुआ था ये लड़का, और फिर घर वालों ने भी निकाल दिया। तो घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, सबको पत्थर मार देना बचपन से ही, तो घर वाले पड़ोसा तो उसको पिटाई करना, बाहर निकाल देना। तो कई बार हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो मेंटल ट्रॉमा और इस तरह बहुत सारी चीज़ें कई बार होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो क्राइम के उसमें उसको मज़ा भी आने लगता है कि क्राइम करो, मज़ा लेने लगो। 30-40 जो गुने, बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे 40 गुने होते हैं, उनको मज़ा आने लगता है फिर वो कि करो, दादागिरी करते जाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन जनरली क्या, इनको समाज का भी कोई वो नहीं है, अपना पेरेंट्स का भी कुछ इज्जत की नहीं पड़ी होती है जो है। इनको तो यही मज़ा आता है कि दादागिरी करो, या अकेलापन रह के अकेले सोचो, ओवर थिंकिंग करते हैं ये। और अब बहुत सारे आजकल तो OTT वगैरह भी, इस तरह बहुत सारी चीज़ें मिली जाती हैं इनको गाइड करने के लिए, वहाँ से भी गाइडेंस ले लेते हैं। क्योंकि जब पकड़े गए तो मोबाइल में सारे OTTs की सब निकले कि जो अलग अलग जो जितने भी सीरियल किलर पूरे देश में हुए, वर्ल्ड में, उनकी पूरी मूवी डाउनलोड की हुई। क्या बात। हाँ। तो इस तरह के देख देख अपने आप को ये अच्छा ट्रेन करते कैसे बचना और इसे कैसे करने का है जो है। तो अब जब हम लोगों ने पकड़ा जो है, तो उसके रिसेंट मोबाइल में उसी दिन डाउनलोडेड भी एक मूवी आई थी उसी समय जस्ट, वो भी वो देख ही रहा था, देख के निकला था वो। हाँ। तो कुछ ना कुछ इस तरह का जो डिसऑर्डर हो जाता है और उनको मजा आने लगता है। राइट। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, पुलिस उनसे हमेशा 2 कदम आगे निकलती है। हम एक बार क्राइम कर जाते हैं, लेकिन इतना तो है। और हमें Right. गुजरात में, मैं दूसरा आपको ये बताऊंगा कि हमारे गुजरात में लोगों का सपोर्ट डिटेक्ट करने में इतना रहता है कि बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं, लेकिन लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि सब डिटेक्ट होते हैं। आप बहुत दुखद घटना थी जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे 2008 में, अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, सूरत में ऊपर वाले की दया से बच गए थे जो है। तो वो ये लोगों ने हर जगह ब्लास्ट किया पूरे कंट्री में, पूरे जगह करते रहे कंट्री में, कहीं नहीं पकड़े गए। लेकिन जैसे यहाँ हुआ वो पकड़े गए, उसमें भी पुलिस की शानदार कामगिरी और सपोर्टेड बाई पब्लिक जो है। तो हमारी जो पब्लिक होती है वो कभी टॉलरेट भी नहीं करती और अपनी मदद भी अपने करती है जो है। इसलिए ऐसे लोग पकड़े ही जाते हैं, भले थोड़ा सा लेट हो जाता है। सर, एक ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनकी कोई हिस्ट्री ऐसी रही है जिनसे उनको साइकोलॉजिकल कोई समस्या या बीमारी हो जाती है और वो क्रिमिनल बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं जो अपने फ़ायदे के लिए क्राइम करते हैं, और सिविलियंस को ये लगता है, सर नॉर्मल लोगों को ये लगता है कि कोई क्रिमिनल पकड़ा गया, जेल चला गया तो सुधर जाएगा। लेकिन जब वो जेल से छूटता है 5-10 साल की सज़ा काट के, वो और बड़ा क्रिमिनल बन के आता है। तो सर आपके साइड पे क्राइम प्रिवेंशन इतनी बड़ी समस्या है, डिटेक्शन तो है ही, लेकिन क्राइम प्रिवेंशन दैट इटसेल्फ इज सच अ बिग प्रॉब्लम। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को? कई बार तो अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल्स होते हैं। कई बार कुछ संजोग ऐसे हो जाते हैं कि वो आदमी क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी घटना बनी
सडनली कुछ प्रोवोकेशन में मारा मारी हुई और इसने किसी को ऐसी जगह वाइटल पार्ट मारा कि आदमी की डेथ हो गई है, ग्रीवियस इंजरी हो गई। राइट। तो ऐसे भी होते हैं जो कि लगभग निकली, उनका बेचारे जो भी ट्रायल वगैरह फेस करते हैं उनके पास जो भी उनका फेट रहता है उस तरह से होता है। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है उनको, जो है जिनको कोई पढ़ी ही नहीं, तो घर सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। वो दूसरे को हैरान करने में उनको पर पीड़ा सुखाए वाली जो फीलिंग है राइट। कि सैडिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं कि दूसरों को करते रहना और अंदर आना जाना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो है। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज ढंग से अपने लाभ के लिए दूसरे को हैरान करना, एक्सटॉर्शन करना, पैसा उगराना, इस तरह की चीजें करते हैं, वो लोग भी होते हैं। और अभी तक उनको ऐसा लगता था कि भाई हम गए अंदर जाके सब जेल में रहते हैं, वहाँ एक गैंग बनाएंगे, गैंग निकलेगी, फिर हम करेंगे, इस तरह का होता था। लेकिन अभी सजाएं जिस ढंग से कन्विक्शन चालू हुए हैं कि सब कन्विक्शन स्पेशल कोर्ट्स होने लगी, कन्विक्शन चालू हो गए, लिमिट में ट्रायल चालू हो गई। अभी कायदा भी आया जो भारतीय न्याय संहिता वगैरह आई, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस आए ट्रायल्स के लिए। तो अभी बहुत सारी सजाएं भी चालू हुई, जो सजा होने की वजह से अब इनके में डर बैठा है कि पहले जैसा नहीं कि 40, 45, 50 ऐसे जो लोग मतलब 50+ क्राइम किए हुए हैं, कोई डर ही नहीं है उनको जो है। और हमारी क्या मर्यादा होती है कि हम तो सिर्फ गुना डिटेक्ट करना, चार्जशीट करना, कोर्ट में उसको भेजना तक होती है। सजा देने की जवाबदारी अपनी कोर्ट की होती है। कोर्ट में जब ट्रायल चलता है उसके बाद वहां से सजा या दोषी या निर्दोष वहां से फैसले होते हैं। लेकिन अभी जिस ढंग से कोर्ट में इन सब में ट्रायल चल रहे हैं, सजा होने लगी तो उसका इम्पैक्ट भी दिखने लगा है। और मैं इसे बात करूँ तो हमारे यहाँ पे सूरत में अभी पिछले 2-3 सालों में 7 फांसी की सजाएं हुई। अच्छा। जो छोटे बच्चियों के साथ रेप विथ मर्डर इस तरह चीजें हुई थी, तो अभी यहाँ की हमारी सूरत कोर्ट में ऐतिहासिक निर्णय हुए और 7 जितने लोगों को फांसी की सजा हुई। राइट। तो ये उनको सजा सुनाई गई है। आगे तो भी अपील वगैरह जो अलग स्टेज है, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट। कि इस तरह होते हैं, उन सब चीजों के हम लोग वीडियो क्लिपिंग बनाते हैं। ये केस था, उस केस में इतने दिन में हम लोग रिकॉर्ड टाइम में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन में चार्जशीट भी कर देते हैं। टॉप प्रायोरिटी पे ऐसे केसेस जो हीनेस क्राइम्स होते हैं, उनको हम चार्जशीट करते हैं। हमारी स्पेशल टीम, एफएसएल की टीम, मेडिकल टीम, सारी टीम जो एविडेंस कलेक्ट किया गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके मेडिकल, सारे एफएसएल के एविडेंस जो कलेक्ट करने के बाद हम चार्जशीट करते हैं और कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं अर्ली ट्रायल्स के लिए। और ट्रायल भी होता है, लोगों को विद इन 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो, सजाएं भी हो गई हैं। राइट। क्योंकि सोसाइटी में एक मैसेज जाना, राइट। क्योंकि ये सब जब इंसिडेंट बनते हैं तो वो फ्रेश जो लोगों के दिमाग में रहते हैं, राइट, फिर धीमे धीमे लोग भूलने लगते हैं। राइट। लेकिन उनकी मेमोरी में रहे और उसी में सजा भी हो जाए, तो ये इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट जा रहा है वहाँ पे सोसाइटी में। हम करेंगे तो कोर्ट हमको छोड़ने वाली नहीं है। राइट, राइट। तो अभी हम लोगों ने ये चालू किया एक सूरत में, चूंकि सूरत एक ऐसा शहर हमारा जो है कि 90 लाख की पॉपुलेशन है हमारे शहर की, उसमें 28 राज्यों के टोटल 40 लाख लोग 28 राज्यों के हैं, जो कि अलग अलग रोजगार, 40 लाख लोग बाहर से हैं। 40 लाख लोग यहाँ पे बाहर के हैं और 28 राज्यों के, अपने देश के मिनी भारत हम बोलते हैं। राइट, राइट, राइट। और उसमें 28 राज्यों के 40 लाख लोग हैं जो कि अलग अलग नौकरी की खोज में यहाँ पे आए हुए हैं। एज ए एक्सपर्ट लेबर भी हैं, स्किल्ड लेबर भी हैं, ऑनर भी हैं, मालिक भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। हर कैटेगरी में लोग यहाँ पे बाहर के लोग आए हुए हैं। तो अलग अलग राज्यों के लोग आए, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन सब लोग को सूरत ने एक्सेप्ट किया हुआ है। और बाकी हमारे जो गुजरात राज्य के 33 जिले हैं, उन 33 जिलों के बाकी यहाँ पे 30 लाख लोग वो लोग हैं। अच्छा। और बाकी हमारे ओरिजिनल हमारे सुरतीस हैं। हाँ। लेकिन हमारे सूरत एक खासियत, सभी को इन्होंने समाहित किया हुआ है। हाँ, राइट। और वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी फॉर श्योर कि इतनी तेज पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है जो है, राइट, कि देखते देखते लास्ट 15-20 सालों में डबल पॉपुलेशन अगर किसी हो गई तो सूरत अपना है। तो ऐसे में जो चैलेंजेस हमारे लिए होते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज प्रॉब्लम, लोगों का जो है अलग अलग बिहेवियर करना, और लगभग हम 15-20 लाख लोग ऐसे हैं जो फैमिली से अलग रहते हैं। इनकी फैमिली इनके नेटिव में है, राइट। तो ये अकेले रहते हैं, तो छोटे छोटे बातों में मारामारी करना, राइट, तो छोटी बच्चियों के साथ क्राइम हो जाना, इस तरह की चीजें से हम लोग बहुत फेस करते हैं सूरत में। तो जो आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं कि ये क्राइम हुआ, रिकॉर्ड टाइम में पुलिस ने चार्जशीट किया
और रिकॉर्ड टाइम में कोर्ट में से जजमेंट आ गया। राइट। तो वो हम लोग सारी बस्तियों में दिखाते हैं। अच्छा, दिखाते हैं सर, पूरी बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, राइट। उनको हिंदी में लैंग्वेज में डब करके बनाई हुई है अच्छी से, हम लोगों ने छोटी सी मूवी बनाई 5 मिनट की, वो दिखाते हैं। जो उड़िया लैंग्वेज है तो उड़िया में दिखाते हैं, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्रियन में दिखाते हैं जो है, और जहाँ जहाँ जिस लैंग्वेज के लोग हैं उन लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके बनाया हुआ है, जो कि हमारी टीम जाती है, प्रोजेक्टर लगाती है, पब्लिक को इकट्ठा करती है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बुलाती है, पब्लिक इकट्ठा 200 200 400 उनको दिखाएंगे। इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने पेन ड्राइव दिया, वो दिखाते हैं। ये तो बच्चियों अगेंस्ट में क्राइम, साथों साथ छोटे छोटे बातों में एक दूसरे को मार के भाग जाना, मर्डर कर देना, राइट, उनका भी, कि उसमें भी भयंकर कन्विक्शंस हो रहे हैं सूरत में। उन दोनों का मूवी हम लोग बना के पूरा दिखाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, आप करोगे तो ये होगा। बहुत बड़ी बात है और सर। विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। राइट। उसमें ड्रास्टिक जो है मतलब रिड्यूस हुए ऐसे क्राइम जो है, लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों ने समझा कि हम करेंगे तो ऐसी चीजें हमारे साथ होंगी, हम बचेंगे नहीं जो है। और हम ये भी सबको बोलते हैं, देखो ये भागा था, पुलिस जाके जंगल से ढूंढ के उनके स्टेट से लेके आई। तो सूरत पुलिस छोड़ने वाले भी नहीं। ये सारी चीज हम उनको एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेड वीडियो बना के हम बताते हैं उनको जो है। तो ये भी है कि भाई लोगों के मन में हम करेंगे तो बचेंगे नहीं। राइट। तो ये भी प्रिवेंशन का बहुत बड़ा एक तरीका है। राइट। जो कि हम लोग अभी सूरत में इस तरह की चीजें करके कर रहे हैं। तो वो जो हमारी प्रॉब्लम है कि बच्चियों के अगेंस्ट में क्राइम और एक दूसरे छोटे छोटे बातों में मारना, उस चीजों को हमने ये करने की वजह से, और कोर्ट का तो हरदम सपोर्ट अपने रहते ही है। अर्ली ट्रायल्स में जो जजमेंट्स आते हैं उसके वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सर ये बहुत बड़ी बात है। मैंने 6 महीने पहले इस पे एक वीडियो बनाया था, मैंने पॉडकास्ट में भी सर बात की थी, जब कलकत्ता में जो रेप केस हुआ, राइट। सो सर वो केस ने मुझे हिला के रख दिया कि कोई बंदा ये कैसे कर सकता है जो 3 बार जेल जा चुका है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब कोई क्रिमिनल ऐसा क्राइम करता है, कहीं ना कहीं उसको वो डर निकल चुका है, या डर कम लग रहा है, या डर नहीं लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, कि मुझे कोई ना कोई आके पकड़ लेगा, मुझ पे किसी की नज़र है, मैं बचूंगा नहीं। तो ये मैसेज वो क्रिमिनल्स को अगर बार बार अगर जा रहा है, मतलब क्रिमिनल जब तक क्राइम नहीं करता तब तक तो दिखेगा नहीं वो, क्योंकि वो क्राइम उसके दिमाग में इमर्ज हो रहा है। तो अगर वो समय पे उनको बार बार अगर ये मैसेज मिल रहा है कि पुलिस पकड़ के कन्विक्शन भी फास्ट होगा, सजा भी होगी, तो शायद वो क्राइम करने से रुक जाए। ये मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सर बोला हुआ है, और मेरी प्रार्थना है कि जो अगर ये पॉडकास्ट नेशनल लेवल पे जाता है, लोग देख रहे हैं, ये हर एक सिटी में होना चाहिए सर, ये मैसेज बार बार लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको ये दूंगा अभी जो मैंने जो बताया पॉडकास्ट, और कि लोग अभी हम लोगों ने ये डिसाइड, एक तो होता है क्राइम जो रूटीन क्राइम्स होते हैं, तो रोड जा रहे तो मारामारी हो गई, ये हो गई, कोई चोरी हुई, इस तरह का अलग। लेकिन ऐसे क्राइम जो अगेंस्ट द सोसाइटी है, राइट, अगेंस्ट द वीमेन एंड चिल्ड्रन है, राइट, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट सोसाइटी का है तो वीमेन एंड चिल्ड्रन हमारे लिए है। राइट। उनकी सेफ्टी ही रिफ्लेक्शन है उस शहर की पुलिसिंग के बारे में। अगर उनके वो दे आर फीलिंग सिक्योर तो समझिए कि वी आर सक्सेसफुल। अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, अनसेफ्टी, इवन चैन स्नैचिंग, हमारे चैन स्नैचिंग के लिए भी हम लोगों ने इतना कर दिया है कि चैन स्नैचर भी बहुत हार्डली बहुत मिनिमल हो गया पूरा। तो ये जो क्राइम्स होते हैं उसमें हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ऐसे केसेस को हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टाइम लिमिट में एविडेंस लेने के बाद चार्जशीट करेंगे, और एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इसमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उसको कराएंगे, मतलब उनके लिए अलग से जो वो अलॉटमेंट होने के बाद वो ट्रायल तुरंत चलाए। तो ऑनरेबल कोर्ट को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारा सब रेडी, अगर ट्रायल हो जाए तो इसमें एक मैसेज भी जाएगा। तो ये जो सिस्टम पूरा बना हुआ है गुजरात में, अपने पूरे गुजरात में सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें सूरत उसमें लीड लेता है, क्योंकि आपको जैसे मतलब 7 में तो फांसी की सजा भी हो गई, और बाकी जो होता है वो एग्जाम्पलरी केस तरीके हम लेते हैं, और एक एग्जाम्पलरी केस तरीके सारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारी जुडिशरी, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, ये सारे लोग मिलकर जो काम करते हैं, उसके बाद इनके मैसेज आता है कि हम करके अंदर बाहर नहीं कर पाएंगे, जेल में गए फिर आगे फिर करेंगे, नहीं, पकड़े गए तो सीधे गए। तो ये मैसेज देना इनको बहुत जरूरी था, इसलिए ये मैसेज हम लोग दे रहे हैं इनको। ऐसे केसेस में अंदर सजा भी हो रही है, और पैरेलली हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं कि देखो इसने ये किया था, इसलिए इसके ऊपर ये सजा हुई और ये गया, ये जिंदगी भर के लिए जेल में गया, इसलिए आप मत करना, नहीं आपके साथ ये होगा। तो कई बार क्या होता है, जो इस तरह के मानसिकता के लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं कि क्राइम के बारे में, लेकिन जब उन्होंने कहीं देखा, सुना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा सूरत शहर में सपोज कोई क्राइम बना,
तो क्राइम की रिपोर्टिंग यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है या हिंदी है या इंग्लिश या गुजराती है, लेकिन वो ऐसे लैंग्वेज बोलने वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई मीडिया में क्या रिपोर्ट है, उसको पता ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पता, ना वो पता है क्या हो रहा है शहर में, उसको कुछ पता नहीं। इसीलिए हम उनके लैंग्वेज में ही पूरा डबिंग करा के क्रिएट करा के उनके एरिया में बताते हैं पूरा। तो वो फिर उसको लगता है कि नहीं, उनके लैंग्वेज में भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था, अब ऐसे ऐसे जाके हुआ, तो इसमें नहीं करना। और लास्ट में हम उनको अपील भी करते हैं कि आप यहाँ पे आए हो, काम धंधा करो, आपके वजह से आपका परिवार रोड पे ना जाए वो देखना। राइट। आप क्राइम करोगे लेकिन सफर करेगा आपका परिवार, विक्टिम तो सफर करेगा लेकिन आपको परिवार सफर करेगा। तो मैसिव हम लोगों ने इनक्रेज किया, सारी इंडस्ट्रीज वालों को दिया गया। इंडस्ट्रीज वाला जो लंच टाइम होता है उसमें टीवी पे लगा देते हैं, लोग लंच करते सब टीवी पे देखते रहते हैं, चलता रहता है। ऐसे एरिया में हम लोग कर रहे हैं। तो अवेयरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट जो प्रिवेंशन जो है। हमारी जो स्ट्रीट टीम है यहाँ पे जो कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन में करते हैं, तो वो उन लोगों ने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लोगों तक ले गई है कि ये क्राइम करने वालों का आज ये है। और कई सारे जो कन्विक्टेड लोग हैं उनका भी इंटरव्यू वगैरह हम लोगों ने लिया, उन लोगों ने उसने बताया कि मेरे से गलती हुई, आज मैं ये हुआ, तो आप लोग जो है मत करना जो है। तो जिस लैंग्वेज के लोग उन्हीं लैंग्वेज में हम लोग ये बात कर रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम अपने गुजराती में बात करें, हिंदी में बात करें, और वो समझ नहीं रहा है, और समझ नहीं रहा, वो क्राइम किए जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। तो उनके लैंग्वेज में भी हम लोग उस चीज़ को उनको बताते हैं, अवेयर करते हैं कि मत करना, नहीं सब प्रॉब्लम होने वाली है। सर, आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट, टेक अ पॉज एंड थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। सैल्यूट, मैसिव रिस्पेक्ट सर। मैं ये बात सालों से कर रहा हूँ, मेरी टीम यहाँ पे, मैं बार बार बताते रहता हूँ कि मैं तो बोलता हूँ सर, होर्डिंग्स लगने चाहिए कि अगर आप कुछ करने की सोच भी रहे हो ना, स्पेशली क्राइम्स लाइक रेप, अगर सोच भी रहे हो ना, तो ध्यान रखना, आपको कानून देख रहा है, पकड़ लेगा, कहीं से भी आपको पकड़ लेगा, और आपको आपने जो किया है उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये मैसेज अगर लोगों तक बार बार जाए, जहां जहां पे हो रहा है, उनकी भाषा में, सर आपकी जो सोच है, सलाम है सर, आप जो कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मैं आपको दूंगा, आप रखिएगा। जो हम लोगों ने मूवी बनाई है, छोटी मूवी है लेकिन बहुत बहुत इम्पैक्ट करने वाला मूवी है। राइट, श्योर सर। सर आपने बताया सूरत जैसा सिटी जहाँ पे 28 अलग अलग राज्य से लोग हैं, गुजरात के अलग अलग जिले से यहाँ पे लोग हैं, तो और ये इमर्जिंग सिटी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इतनी हो रही है। सर ऐसे सिटी में इमर्जिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, एंड हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट? सूरत जैसे मैंने बताया कि 90 लाख की पॉपुलेशन है शहर की, और शहर भी इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। अभी लग रहा है, यस, 1.5 घंटा लग जाता है इसमें, और 60-70 किलोमीटर लगभग विड्थ हो जाती है जो दरिया भी है हमारा, पूरी इंडस्ट्रीज पूरे कोस्ट पे है, समुद्र है, पूरा सी पे जो है बड़े बड़े पोर्ट्स भी हैं, सारी इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं। दूसरी तरफ पूरी टेक्सटाइल की अलग इंडस्ट्री अलग लगी हुई है, डायमंड का अलग पूरा है यहाँ पे जो है। तो देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ डायमंड का टोटल व्यापार होता है, व्यापार होता है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमारा टेक्सटाइल का है यहाँ पे। अब दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो तो स्टील वगैरह का, वो तो उनका अलग से ही है पूरा। तो ये जो 2 इंडस्ट्रीज मैंने बताया कि डायमंड और ये अट्रैक्ट करती है बाहर के जो स्किल्ड लेबर फोर्स को जो है। तो अब ये इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट कैसे होता है, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट कनेक्ट होगा, लेबर्स कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रिक का बहुत सारा चीज़ें जो होगी वो कनेक्ट होगी। तो करते करते इतना मल्टीपल एजेंसीज इसमें काम करती हैं, और हमको इनको प्रोटेक्ट करना है बिजनेस को भी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बिजनेसमैन को कोई चीट नहीं करे, कोई रॉब नहीं करे, कोई उनके साथ जो है कोई लूट नहीं करे, जो है उनका माल लेने के बाद भागे नहीं, जो है उनका पेमेंट नहीं अटकाए, जो है तभी बिजनेस चलेगा। अदरवाइज पूरे देश में ये लोग एक दूसरे के फेथ पे बिजनेस करते हैं, माल भेजा, कोई सामने से पैसा नहीं दिया, वहाँ से भाग गया वो जो है बंद करके, या उसने कोई डुप्लीकेट डायमंड डाल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि जो इंडस्ट्री ये मतलब हमें से उम्मीद करती है कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट करे जाए। तो हमें अपने आप को उस तरह से एक इंडस्ट्रियल सिटी में, एक बिजनेस हब वाली सिटी में हमें अपने आप को भी ट्रेन करके रखना पड़ता है उस माइंड सेट के साथ कि हमारे किसी व्यापारी के साथ कोई चीटिंग ना हो। और कोई चीटिंग करे तो हम जो भी ऑफेंस बनता है ऑफेंस दाखिल करके उस आदमी को वहां से पकड़ कर लाएं जो देश के किसी कोने में बैठा हुआ है। तो मैसेज भी देना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हमारी बहुत सारे टीम सूरत शहर से बाहर ही रहती हैं, उन आरोपियों को ढूंढते ही रहते हैं कौन कहाँ से भागा। और इसीलिए हमारा शहर ऐसा है कि 40-40 साल पहले से भागा हुआ आरोपी, 30 साल 35 साल 20 साल, उन्हें इतने वांटेड आरोपियों को हम लोग पकड़ लाते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है
वो यही सिर्फ देख रही है कि कितने आरोपी अभी तक नहीं मिले जो भागे हुए, उनको तो किसी ने भेष बदल लिया है, किसी ने हुलिया बदल घूम रहे हैं, सबको हम लोग लेके आते हैं। तो एक तो हम वो देखते हैं, दूसरा ये देखते हैं कि सारी कम्युनिटी एक ही जगह रहती है, तो कभी कोई क्लैश ना हो जाए, राइट, किसी उनके कोई फेस्टिवल हो रहे हैं उसमें क्लैश ना हो। राइट, तो उसके लिए हम लोग पूरा हमारा इंग्रेस, हमारे लोग, क्योंकि हमारा गुजरात पुलिस में है कि हम लोग 100% गुजराती जो वही पुलिस फोर्स में जो है भर्ती होते हैं जो है। और बहुत सारे लोग जो बाहर के जो यहीं पे रह गए हैं, डोमिसाइल हो गए हैं, वो होते हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल संख्या रहती है। तो हमको उड़िया भी बोलना, ऐसे लोग से कॉन्टेक्ट रखते हैं जो हम कम्युनिकेट करें। हमको जो है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो लोग बहुत हैं, तो उनके साथ हमें जो इंटरेक्ट करना, तो वो लैंग्वेज वाले लोग हमको चाहिए। हर तरह के, हर लैंग्वेज के लोग हमारे साथ रहते हैं। हम लोग जो उनके साथ बातें करते हैं उनको बताते हैं। सारे उनके रिलीजियस प्रोग्राम में हम जाते हैं। अच्छा, हम, क्योंकि हमें उनके साथ हम एक कनेक्शन उनके बनाना हैं, है, वो हमारे हैं, राइट, ये चीज को हमको रखना है। क्योंकि ये सूरत की खासियत है, बोलते हैं कर्ण की नगरी है ये। कर्ण जो दानवीर कर्ण की नगरी है, राइट, तापी नदी जो सूर्यपुत्री है उनकी नगरी है जो है। तो ये एक ऐसी दानवीरों की नगरी है। और आपको पता ही होगा जो सूरत हमारा दान के दाताओं के उसमें, चाहे आर्थिक दानवीर हो, चाहे सामाजिक दानवीर हो, चाहे शिक्षा के फील्ड में हो, देह दान में हम लोग नंबर 1 है, आंखों के दान में, नेत्र दान में नंबर 1 है, अंगों के दान में नंबर 1 है, और रक्तदान में भी नंबर 1 है। वाह। तो सूरत जो दानवीरों के शहर बोलते हैं, हर फील्ड में सूरत आगे है। और ऐसे तभी आगे है क्योंकि सारी जो 28 राज्यों के हमारा मिनी भारत है, सब यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सूरत ने बहुत दिया है सर सबको, सूरत ने भी सभी को दिया है, और सभी लोग सभी ने सूरत को भी दिया है, बहुत दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या कर रहे हैं, लोगों को ये रियलाइज भी कराते हैं कि तुम सुरतीज हो। यही एक शहर है, हम सबको सुरती बोलते हैं। सर मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, चेन्नई से आया हो वो भी सुरती है, राइट, चाहे हमारा यूपी से वो भी सुरती है, और अपना जो गुजरात का वो भी सुरती है। सब सुरती लाला है, जिसको बोलते हैं सुरती लाला, मस्त रहने वाले लोग। तो इनके साथ हमारा जो इंस्पेक्टर, हमारा कांस्टेबल, इनके हर जगह इनके साथ उठना बैठना, बात करना, इनको रियलाइज कराना कि आप कहीं पे भी अननोटिस नहीं हो। आपका कोई तकलीफ हो तो पुलिस स्टेशन में आप ये मत सोचना कि आप कोई समझने वाला नहीं है, हम आपके लिए बैठे हैं। तो वो फीलिंग हम लोग लाई, जो आपको मैंने 2 मूवी बताई, उस मूवी में यही चीजें हैं, राइट। क्योंकि हमने ये अभिगम रखा कि अगर हम इनका नहीं सुनेंगे तो फिर ये आपस में दुश्मनी निकाल लेंगे, राइट। इनके छोटे झगड़े भी जब पुलिस आते हैं, हम इनको नहीं ठीक से जो है एड्रेस कर पा रहे हैं कि इनकी लैंग्वेज अलग अलग थी, हम नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, तो ये आपस में दुश्मनी निकालेंगे, तो क्राइम बढ़ेगा, राइट। तो हम इनके पास सामने से गए लोगों के पास कि भाई अब आप हमारे पास आओ, या हम आपके पास आ रहे हैं। लोग दरबार लेना, पब्लिक के बीच में फंक्शन करना, उनको पूछना आप क्या तकलीफ है। तो बहुत सारी चीज जब उनको लगा कि नहीं, पुलिस हमें खुद अप्रोच की हुई है, पुलिस खुद हमारे सोसाइटी में आ रही है, मोहल्ले में आके पूछती है आपको कोई तकलीफ हो तो बताइए। तो इसके वजह से बहुत सारे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होते हैं, जो बड़े रूप में कन्वर्ट होते हैं, वो चीज़ों आने लगे हैं। उसका परिणाम भी हमें इस बार दिखा। तो ऑलमोस्ट 60% तो मर्डर के गुने हमारे डाउन हो गए अभी 3 महीने में जो है, राइट। क्योंकि हमने उनको अप्रोच किया कि आप हमको एक बार मौका दो, राइट, आपस में दुश्मनी मत निकालो जाए, राइट। तो वो फीलिंग लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा मिनी भारत में सभी को संभाल के चलना, राइट, राइट। ये हमारे चैलेंज है। तो सूरत को उस तरह से हम लोग संभाले हुए, और हमारी जो सूरत की जो पुलिस है, हमारे कांस्टेबल्स वगैरह इतने अच्छे हैं, उनका इतना अच्छा नेटवर्क पूरे अदर राज्यों में है कि कोई भी क्राइम करके भागा तो वो अपने नेटवर्क से उसको लोकेट कर लेते हैं। तो एक ये खासियत सूरत पुलिस की भी है। सर मैं जितना सोच सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपका काम कॉम्प्लिकेटेड है। जो आपने बताया कि इतने सारे लोग, इतनी भाषाएं, इनके साथ कनेक्शन बैठाना, क्राइम प्रिवेंशन की जो आपकी सोच है कि अगर इनके झगड़े हम नहीं सुनेंगे तो ये आपस में दुश्मनी निकालेंगे, क्राइम बढ़ेगा। सर ये भी एक रिवोल्यूशनरी सोच है कि एक सिर्फ कनेक्शन बढ़ाने से कम्युनिटी के साथ भी क्राइम कम हो सकता है। सर मैंने ये भी सुना है कि सूरत की जनता आपको आके मिल सकती है यहाँ पे, मतलब आपके गेट्स ओपन है उनको मिलने के लिए, और आप अपना समय भी उनको देते हैं। हम लोग तो पब्लिक के लिए ही है, जो पुलिस है पब्लिक की है। उसमें कई बार होती है कि जो सीनियर अधिकारी जो होते हैं, तो इतनी चीज़ें हम लोग एक साथ करना होता है। हमको बहुत सारे जो गवर्नमेंट के काम आते रहते हैं, उनके जो भी कंप्लायंसेस करने रहते हैं, उसमें हमारा होम डिपार्टमेंट का, हमारा डीजी ऑफिस का जो है उनको करना है, कोर्ट्स वगैरह को साथ जो संकलन करने का है,
फिर हमें जो पब्लिक के अलग अलग ग्रुप के साथ संकलन करना, मीडिया के साथ संकलन करना, हमको पुलिस का वेलफेयर को देखने का है। जो हमारी फोर्स 6,500 लोग की फोर्स है, उनको हमको संभालने का है, उनको प्रमोशन टाइमली वेलफेयर देखने का है, हमें जनरल लॉ ऑर्डर को भी देखने का है, और इतने के बाद पब्लिक से भी पूरा मिलने का है। तो कई चीज़ें होती है कि इतनी चीज़ों को हमको बैलेंस करना है। सर आपका एक दिन, सॉरी सर, आपका एक दिन कैसा रहता होगा? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, प्लस आंसरेबिलिटी भी है। ये सूरत एक तरीके से देखे तो होम मिनिस्टर जी यहाँ से है, तो एक मतलब कैसा दिन रहता होगा सर आपका, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो? तो उसमें वही मैं बता, इतनी चीज़ों हमको करने का है, और हर छोटी मोटी जो घटना बनती है वो मेरे नॉलेज में आना चाहिए, हमारे फोर्स को गाइडेंस चाहिए। हमको इमीडिएटली उनको गाइड, पुलिस में सोच के बताऊंगा ऐसा नहीं चलता। इमीडिएटली आपको गाइड करने का है, इमीडिएटली आपको इंस्ट्रक्शन देना है क्या करने का है, वो भी देने का है, और पैरेलली हमें सारे पब्लिक से मिलना है। तो जनरली मेरा पर्सनल भी रहा, सभी अधिकारी भी करते हैं कि एवरीडे जो है पब्लिक से हमें मिलना है। और मिलने समय जो फायदा है, एक तो हमें पब्लिक के थ्रू जाने को मिलता है कि हमारे शहर में क्या चल रहा है, किस तरह क्राइम हो रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम हमारी पब्लिक फेस कर रही है, एक हमें वो मिलता है, जानने को मिलता है। और वो जो भी आते हैं उनका जो प्रॉब्लम, हम लोग एड्रेस कंसर्न थाने हो गए, या हम लोग थानों को ज़्यादा हम लोगों ने एक्टिवेट करके रखा हुआ है कि पब्लिक को यहाँ तक ना आना पड़े, हम उनको काम थाने से हो जाए। तो जब हमारे पास मिलती है तो हम थाना अध्यक्ष को जो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये इनका नंबर रहा, इमीडिएटली आप इनसे मिलोगे, बुलाओगे, और जो भी लीगल चीज़ हो वो आप लीगल करोगे जो है। तो हमारे थानों को पता है कि जब कोई भी आदमी पुलिस कमिश्नर से मिल सकता है, और पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे और ये बताएंगे कि मैं थाने गया था, थाने में मेरी नहीं सुनवाई हुई, या थाने से हमारा जो नहीं लीगल काम हुआ, तो आएंगे तो हमें काम तो हम उनको करना होगा, थाने वालों को, और उनके अलावा उनको थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा सीनियर अधिकारी के 2 बातें जो है। तो बेटर है कि इससे ये फायदा हुआ कि हमारे थाने एक्टिवेट ज्यादा हो गए, कि वही पब्लिक को जो उनको सुनना चालू किए। सेकेंडली, बहुत सारे जैसे लोग इनके ग्रीवांसेस के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवांसेस होती हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी आते हैं, तो भी हमें कई बार लगता है कि भाई हमारे थाने ने पूरी कोशिश की, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इतना ज़्यादा मतलब उसमें पारिवारिक विवाद है, इतना कोर्ट कचहरी हो रखी है कि ये थाने काम नहीं है। तो फिर हम लोग हमारी जो अलग स्पेशलाइज एजेंसीज है, इकोनॉमिक क्राइम सेल, क्राइम ब्रांच, SOG होगी, इनको हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि आप ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो आप इसको आप देखो, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, जो है इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग करते हैं। फिर हमें जो विजिटर्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वो आते हैं, उनमें हमको जाना होता है। हम 2 बातें उनकी, जब 40,000 50,000 लोग, 10,000 लोग की भी वहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो उसमें जाके हमें भी चांस मिलता है कि हम अच्छे लॉ ऑर्डर के लिए 2 बातें वहाँ कर सकें, पब्लिक को बहुत सारे अवेयरनेस के लिए बता सके, साइबर क्राइम के बारे में बता सके, उनको रिक्वेस्ट कर सके, बहुत सारी चीज़ हमें भी एडवांटेज होता है। तो उसमें भी हमको जाना है। पब्लिक जो कंप्लेंट आ रही, तो हमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा, मैंने एज ए राजकोट पुलिस कमिश्नर भी देखा, बड़ौदा पुलिस कमिश्नर तरीके, ये हमारा अनुभव रहा कि हमारे मिलने से हमारे थाने बहुत एक्टिवेट हो गए। और थाने को जब पता है कोई भी आदमी जाके जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिल सकता है, तो बेटर है कि हम ही मिलकर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हमारी पब्लिक को यहाँ तक आने का धक्का नहीं खाना पड़ता, उनका टाइम भी बचता है, और हमारा थाना का तो आफ्टर ऑल काम उन्हीं को करना है, मैं तो उन्हीं के पास भेजने वाला हूँ, विद नोट करके रखना है। और हर वीक में और हर मंथली जो क्राइम कॉन्फ्रेंस होती है, मैं बताता भी हूँ कि इस महीने में इस पुलिस स्टेशन से इतने विजिटर मेरे पास आए कंप्लेनेंट, इतने आपके, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर पुलिस स्टेशन, कि आपके कंप्लेंट हमारे पास इतने आए, उसमें जेन्युइन प्रॉब्लम जो उनकी कई बार होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड वालों को हम निकालते हैं, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम में आप सॉल्व नहीं करें, इट मीन्स कि योर फंक्शनिंग इज नॉट वेल। तो उनको भी ये मिलता है कि समबडी इज वाचिंग, तो हमारे थाने एक्टिवेट रहें। तो इसीलिए थाने गवर्नमेंट ने बनाए हैं। थानों में 100 लोग होते हैं जो है, और 2 इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो वो जो एक्टिवेट होते रहते हैं, इसलिए प्रजा का काम लोकल लेवल पे हो जाए, जो गवर्नमेंट का अभिगम भी है कि थाने लोकल लोगों को सर्व करते रहें। तो उसमें हमें एडवांटेज खूब मिलता है पब्लिक से मिलने पे। ગ્રેટ ઇનિશિયેટિવ સર. સર આ સવાલ હું ગુજરાતીમાં પૂછીશ. આ સુરત માટેનો સવાલ છે. સર, સુરતની ટ્રાફિકની જે સેન્સ છે, અગર એની વાત કરીએ, છેલ્લા અમુક વર્ષોમાં ખૂબ જ વધારે સારી રીતે ઇમ્પ્રૂવ થઈ છે, અને હમણાં તો જોઈએ તો એમ લાગે કે સુરત સૌથી વધારે શિસ્તબદ્ધ શહેર છે વેન ઇટ કમ્સ ટુ ડ્રાઇવિંગ એન્ડ વેન ઇટ કમ્સ ટુ ટ્રાફિક સેન્સ. તો સર, એવું તો આપણે શું કર્યું છેલ્લા અમુક મહિનાઓમાં કે સુરતનું ટ્રાફિક સેન્સ આટલું બધું ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયું? બધા હેલ્મેટ લઈને ફરે છે, બધા સિગ્નલ્સને ફોલો કરે છે, બધા
ઇવન લેન ડિસિપ્લિન ફોલો કરે છે, રોડ રેજ કે રેશ ડ્રાઇવિંગ ઓછું દેખાય છે. આ બહુ સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે સર. તો એવું તો આપણે શું કર્યું છેલ્લા અમુક મહિનાઓમાં કે આ બધું ચેન્જ થયું? पहली बात तो सूरत में बात करें तो सूरत इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर साथे અમે લોકો નંબર 1 છીએ. રાઈટ. એર ક્વોલિટીના પ્યોરિફાઈ કરવામાં જો પ્રયાસો કરવામાં આવે છે, ચાહે ઈવી વ્હીકલ લઈએ કરે, આમાં બી અમે ઇન્ડિયામાં નંબર 1 છીએ ક્લેરિફિકેશનના પ્રયાસોમાં. રાઈટ. શુદ્ધ પાણી લોકોને આપવા અને એના પ્રયાસોમાં બી સુરત નંબર 1 છે પૂરે ઇન્ડિયામાં જોઈએ. તો આપણા ડિસિપ્લિનમાં નંબર 1 કેમ નહીં રહીએ જોઈએ. તો જ્યારે હું પણ અહીંયા ચાર્જ લીધા 15 એપ્રિલ 2024માં જોઈએ, ત્યારે અમે જોયા અહીંયા આવ્યા કે જેના જે મરજી તે રીતે રોડ ઉપર જાય છે. સિગ્નલ से कोई मतलब नहीं. सिग्नल भी कोई काम करे कहीं नहीं करे. लोगों अपने आप जो ट्रैफिक पुलिस जितना मैनुअली जो काम करती थी, रुके नहीं, कोई मर्जी नहीं, निकली जाए आड़े दल. रॉकेट है ना बोलता था. रॉकेट जो लोग अपना मोटरसाइकिल चलावे, एक्सीडेंट થાય, સિનિયર સિટીઝન રોડ નહીં ક્રોસ કરી શકે, બાળકો સ્કૂલ જતા હોય એના માટે થ્રેટ હતી. ક્યારે કોઈ પણ ગાડી કોઈ પણ ડાયરેક્શન્સ આવી જતી હતી. તો ત્યારે અમે લાગ્યા જોઈએ કે ભાઈ આ તો નહીં ચાલવા જોઈએ, આમાં ડિસિપ્લિન લાવીએ જોઈએ. એના માટે પહેલે તો અમે પ્રયાસ કરવાની જરૂર હતી કે અમારે મેં શું ખામીઓ છે. અમે ટ્રાફિક પોલીસને ભેગા કરે એના તાલીમ ચાલુ કરી કે ભાઈ આપના જો સિગ્નલથી સુરતને ચલાવવાના છે. એના માટે પહેલે તો પોલીસ અધિકારીઓ સિગ્નલનું પાલન કરે. પહેલે તો પોલીસની ગાડીઓ બી નીકળી જતી હતી, કોઈ રેડ હોય કે ગ્રીન હોય યલો કોઈ મતલબ નથી. રાઈટ. તો એક તો અમે अपने પોતાના ટ્રેન કર્યા, સાથો जितने भी सिग्नल्स હતા जो है, तो जितने हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हर्षभाई संघवी साहब तरफ से भी हमें એટલા પુષ્કળ સપોર્ટ મળ્યા કે ભાઈ આપણા કરવા જોઈએ. ક્योंकि આમાં શું છે, પોલિટિકલ વિલ બી બહુ જરૂરત છે. રાઈટ. 100%. એટલા મોટા કામ સુરત 90 લાખ લોકો માટે કોઈ ચેન્જ લાવવાની જરૂરત હોય તો પોલિટિકલ વિંગ બહુ જરૂરી, સપોર્ટ બહુ જરૂરી હોય છે. રાઈટ. ફૂલ સપોર્ટ સાથે અમે લોકો જ્યારે પ્લાનિંગ કરતા હતા, સિગ્નલને કરેક્ટ કરતા હતા, સિગ્નલના ટાઈમિંગ સેટ કરતા હતા કે એક રોડ ઉપર નીકળે તો કેટલા સિગ્નલ આવે, નજદીકને કેટલા સિગ્નલ છે જેના બંધ કરવાની જરૂરત છે, કેવી રીતે કરીએ. મીન ટાઈમ કોઈ મીડિયા રિપોર્ટ કરી દીધા ભાઈ 15 મેથી, अभी एक ही महीना आता, હું 15 એપ્રિલને જોઈન કર્યા હતા, 15 મેથી જો સુરત શહેરમાં ટ્રાફિક નિયમન સિગ્નલથી પાલન થશે. और हमारे तैयारी देते वक्त હતી નહીં, क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिकली सारे जो डिफर्म सिग्नल ने ठीक करता था जो है. अच्छा, मीडियाએ આર્બિટ્રરીલી પોતાની રીતે કરી દીધું અનાઉન્સમેન્ટ. ક્યારે બાતચીતમાં કોઈ એવું સાહેબ આપને પ્રાયોરિટી શું છે, તો બોલા કે અમારી પ્રાયોરિટી સિગ્નલ ન છે. અચ્છા, એ લોકો છાપી દીધું. કેટલા સમય થઈ જશે, તો બોલા કે અમે કોશિશ કરીએ છીએ કે 1-2 મહિનામાં સિગ્નલ રેડી થઈ જતો છે. 15 મહિના લાગે છે તો આ લોકો પોતે છાપી દીધા. એક્ઝેક્ટ 15 મઈથી લોકો સિગ્નલ पे સ્ટોપ. વાહ ભાઈ વાહ. પોતે અમે તો કોઈ અપીલ બી નથી કરી હતી. अब 15 મઈથી જો લોકો સ્ટોપ થયા અને પછી જો અમારા સિગ્નલ રેડી નહીં હતા, અનવન ટાઈમ બતાવતા તો કોઈ 900 સેકન્ડ बतावे कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सेट करता था. बहुत वर्षों से बंद पड़ेला सिस्टम હતા जो है, અને લોકો तरफ से खूब क्रिटिसिज्म चालू થયા जो है कि 900 સેકન્ડ સિગ્નલ, 700 સેકન્ડ સિગ્નલ એમ છે તેમ છે. લેકિન અમે અમારા જો વરાછા એરિયા છે, જો સુરતના આન બાન શાન વાળા એરિયા છે, સુરતને ઓળખાય છે વરાછાથી, અને સૌથી વધારે જો લોકો આંદોલનવાળા એરિયા છે અમારા વરાછા, ત્યાં 100% કમ્પ્લાયન્સ ચાલુ થયા. તો એના જોઈને અમે લોકોને લાગ્યા કે અમારા વરાછા મેં જબ લોકો પાલન કરે તો અબ अपना પાછળ નહીં જવાના. અને જો બી જેટલા ક્રિટિસિઝમ થાય કે સિગ્નલ બરાબર નથી એમને, ફિર ભી કોઈ બાત નહીં, રાત દિવસ અમારી પોલીસની ટીમ और सूरत महानगरपालिकाની जो ટેકનિકલ ટીમ હતી સિગ્નલ, એની ટીમ, વેન્ડર જો હતા લગાયા હતા, એના લઈને રાતભર અમે લોકો જો હે સિગ્નલ ઠીક કરીએ. और એટલા જ ગાલી अपने ना सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल विंग ने મળતી હતી, लेकिन पॉलिटिकल विंग ने पूरा सपोर्ट હતા કે ભલે જો બી હોય સુરત માટે સારા કામ થાય, તમે લોકો ગાળો સાંભળીશ, લેકિન તમે લોકો કામ કરો. તો રિલિજિયસલી એફર્ટ થયા અને જોતા જો એ સિગ્નલ્સના લોકો ફોલો ચાલુ કરે. રાત 12 વાગે બી એક ગાડીઓ તો બી સિગ્નલ પર રોકાય. અને અમે લોકો પબ્લિકના કે ભાઈ હું કેટલા સિરિયસ છું, જેટલા મોટા સર્કલ હતા, અહીંયા સર્કલ બહુ કલ્ચર હતા કે એટલા મોટા સર્કલ કે એના ઉપર ક્રિકેટ મેચ રમવા માટે લોકો પરમિશન માંગવા આવે કે અમે સર્કલ ઉપર ક્રિકેટ રમવાનું, એટલા મોટા આ એના તોડવાના, સ્ટડી કરવાના, SVNIT અહીંયા છે એના એન્જિનિયર્સનો ઉપયોગ કરવાના. તો ધીમે ધીમે જો અમારા એફર્ટ થયા, આ એફર્ટને લીધે પબ્લિકને લાગે કે નહીં આ પોલીસ એટલા એફર્ટ કરે છે તો અમે લોકોને સપોર્ટ કરવા જોઈએ. અને એના લીધે આજે સિગ્નલ ચાલુ થયા.
સિગ્નલના લીધે એટલા થયા કે પુષ્કળ ડ્રાસ્ટિક એક્સિડન્ટમાં કમી થઈ. ફેટલ એક્સિડન્ટ ખૂબ ઓછા થઈ ગયા. ક્યોંકि લોકો જો ભાગે તો કોઈ ને કોઈ એક્સિડન્ટ થાય. अच्छा हेलमेट जते वक्त पहनता नहीं था तो गिरे और सीधे डेथ થાય છે. સિનિયર સિટીઝન રોડ નહીં ક્રોસ કરી શકતા, અત્યારે આરામથી રોડ ક્રોસ કરે છે. બાળકો ઘરેથી નીકળે છે તો બાળકો આપણા શાળા જ્યારે સ્કૂલ જાય તો એકદમ સેફટી સાથે રિક્ષા બી જાય. તો જો સપોર્ટ અમે સિનિયર સિટીઝન અને અમારા જો બહેનો તરફથી મળવા જોઈએ જેના બાળકો સ્કૂલ જાય કે આપ લોગ એના સિગ્નલ બારે ભલે જેટલા ક્રિટિસિઝમ થાય જેને કોઈ દિવસ જો પાછળ નહીં પડતા. તો આ લોકોનો સપોર્ટ પછી સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સરના અમે લોકો રિક્વેસ્ટ કર્યા. अच्छे अच्छे जो सूरत शहરના નામી ગ્રામી જો બુદ્ધિજીવીઓ છે જો સુરત માટે બહુ માયને રાખે છે એના અમે રિક્વેસ્ટ કર્યા કે ભાઈ આપ મને સપોર્ટ કરો, અમે જો કરીએ છીએ સુરત માટે કરવાના છીએ. આ બધા લોકો ખૂબ પુષ્કળ સપોર્ટ કરાય અને જેનો જબ રિઝલ્ટ મળવાના ચાલુ થયા કે સિનિયર સિટીઝનના રિસ્પોન્સ, બહેનોના સપોર્ટ, બાળકોના સેફટી, એક્સિડન્ટ રિડ્યુસ થયા, લોકોમાં ડિસિપ્લિન આવ્યા. और સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ચેન સ્નેચિંગના ગુના જ્યાં જ્યાં અમારા સિગ્નલ ચાલુ ત્યાં ચેન સ્નેચિંગ બંધ થઈ ગઈ. કારણ કે ચેન સ્નેચિંગ ભાગી નહીં શકે. સિગ્નલ ચાલો તરફ ચાલુ છે તો કંઈ ને કંઈ પકડાઈ જાય જો એમના પોલીસની હાજરી 4 રસ્તા ઉપર. તો એના લીધે શું થયા કે બહુ સ્મૂથ અને ડિસિપ્લિન મૂવમેન્ટ ચાલુ થયા સુરતમાં. પછી અમે નેક્સ્ટ સ્ટેપ લીધા જો હેલ્મેટના. હેલ્મેટ માટે બી ડિસેમ્બરના મહિનામાં 2024 ડિસેમ્બરમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી એક અપીલ કરી કે ભાઈ 45 દિવસ પછી 15 ફરવરીથી હેલ્મેટના બધા લોકો પાલન કરશે. 45 દિવસ અમે પ્રજા પાસે ગયા, પ્રજાને સહયોગ માંગ્યા કે ભાઈ આપ હેલ્મેટ પહેરો, હેલ્મેટને એટલા ફાયદો છે. હેલ્મેટના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 5000 હેલ્મેટ તો હું પોતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરાવી જોઈએ બધા અલગ અલગ સંસ્થાઓની મદદથી. અને લોકો ખુદ મોટરસાઇકલ રેલીઓ અમે લોકો કરી, પોતે અમે લોકો મોટરસાઇકલ ચલાવીને ગયા કે હેલ્મેટ પહેરવાથી એટલા ફાયદો છે જોઈએ. અને 15 ફરવરી 2025થી હેલ્મેટના ચાલુ કરશે. અને 14 ફરવરીના રોજ 30% લોકો હેલ્મેટ પહેરતા હતા. 15 ફરવરી સીધે 98% લોકો હેલ્મેટ એક દિવસના અંદર. અને આજે અમે 2 મહિના થઈ ગયા, અમે અત્યારે ડેટા આજે તક 28% અમારે હેડ ઇન્જરીના કેસીસ સિવિલ હોસ્પિટલો વગેરે में डाउन થઈ ગયા. અને મૃત્યુ જો ફેટલિટી થતી હતી બિના હેલ્મેટના એકદમ ડ્રાસ્ટિક ડાઉન થઈ ગયા. લોકોને મૃત્યુ, લોકોના જો હેડ ઇન્જરીના જો કેસીસ જતા હતા આ એકદમ ડ્રાસ્ટિક ડાઉન થઈ ગયા પૂરા. અને લોકો હેલ્મેટ પહેરીને ચાલે એટલા સ્માર્ટ લાગતા હોય છે, સેફટી હોય. આજે અમારા આ બધા લોકોના ઘરવાળા, અમારા દીકરા દીકરીઓ હેલ્મેટ પહેરીને ઘરેમાંથી જાય મોટરસાઇકલ તો આપણે બે કોન્ફિડન્સ ફીલ થાય છે કે અમારા દીકરા દીકરીઓએ, અમારા હસબન્ડ, અમારા વડીલ હેલ્મેટ પહેરીને ગયા છે તો વી આર ફિલિંગ સેફ. તો જો સેન્સ ઓફ સેફટી આપણા બહેનોને ખાસ કરીને જો મળી છે જો કે સૌથી વધારે ચિંતિત બહેનો હોય છે કે એના દીકરા દીકરીઓ, એના પતિ, એના હસબન્ડ અને એના બીજા લોકો જતા હોય છે. તો ત્યારે આ સપોર્ટના લીધે, હેલ્મેટના લીધે આજે સુરતમાં આપ જોઈ શકો છો કે લગભગ મોર દેન 98% લોકો હેલ્મેટ પહેરે છે. જો 2% લોકો નથી પહેરતા એના બી અમે અપીલ હરદમ કરતા રહીએ છીએ કે આપને હેલ્મેટ પહેરવાથી એટલા ફાયદો. અભી એટલા એક્સિડન્ટ થયા રિસેન્ટ 1 મંથમાં. આમાં સીસીટીવી બધી જગ્યાએ લાગી ગયા તો ફૂટેજ આવે. ફૂટેજ અમે લોકો બહાર બતાવીએ દેખો આ હેલ્મેટ પહેર્યા હતા એના લીધેના જીવ બચ્યા. આપ બી હેલ્મેટ પહેરો. તો અમે દંડ નહીં બલકી કમ્પ્લાયન્સના વધારે જો ઉપર કરીએ છીએ કે કમ્પ્લાયન્સ કરો, ના કે અમે દંડ કરીને આપને ઉપર કુછ કરવા માંગીએ. દંડ અમારા પ્રાયોરિટી નથી. ના ગવર્મેન્ટના આપને ₹1 દંડની જરૂરત છે. આપણી ગુજરાત ગવર્મેન્ટ 3.5 લાખ કરોડ બજેટ વાળી ગવર્મેન્ટ છે. તો 5-7 કરોડ રૂપિયાના કમ્પ્લાયન્સ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ, हमें कम्प्लायंस અને આપની સેફટી જોઈએ. રાઈટ. તો અમારો સુરતીસ આ મામલેમાં નંબર 1 છે. 100% સર. જે રીતે બધા અમે બતાવ્યા કે એર, વોટર, ક્લીનલીનેસમાં છે, આ રીતે ટ્રાફિક નિયમન પાલન કરવાનું અમારા સુરતી નંબર 1 છે. 100% સર. સર, આપે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની પોલિટિકલ વિલનો ઉલ્લેખ કર્યો. સર, જ્યારથી એમને ગૃહ વિભાગની જવાબદારી સંભાળી છે ત્યારથી મેં એમના કામને નોટિસ કર્યું છે અને એમના કામને હું ખૂબ જ વખાણું છું એટલા માટે કે ગુજરાતમાં ખૂબ જ સેફ ફીલ થાય અને હરેક વિષય પર એમની પોલિટિકલ વિલ અને એમની જે ઈચ્છા છે કે ક્રાઇમ ઓછું કરવાની, ઇલીગલ ઇન્ક્રોચમેન્ટ હોય કે રાઇટિંગ હોય કે ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ હોય કે ઇવન ટ્રાફિકને લગતી સમસ્યા હોય, એમાં સર પહેલી વાર હું જોઉં છું કે કોઈ ગૃહ રાજ્યમંત્રી આટલું ખુલીને બોલે છે અને આવી વિલ બતાવે છે કે મારે ચેન્જ લાવવો છે અને ચેન્જ લાવે છે. સર, તો તમે તેમની સાથે નજીકથી કામ કર્યું છે તો સર એમનામાં એવી શું ખાસિયત છે, એમની કાર્યશૈલીની શું વિશેષતા છે કે એ ઈચ્છે છે અને થઈ જાય છે? अभी हमारी गुजरात सरकार में हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब जो है
એના નેતૃત્વમાં જો અમારા ગૃહ વિભાગ કામ કરે છે અને जो सीएम साहब ने सूचना है कि अपना गुजरात पहले तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, महिलाओं ने सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, साथों साथ जो हमारा लोगों ना जो मुहिम है कि ड्रग्स को एकदम पूरा नेस्तनाबूद करवाना चाहिए, Right. अपना सोसाइटी ने जो सिक्योर रखवाना છે અને સાથોસાથ જેટલા બી ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ ક્રિમિનલ્સ જો દંગાઈ એના વિરુદ્ધમાં જો ડ્રાઈવ છે તો જો સીએમ સાહેબને જેટલા બી અભિગમ છે એના અભિગમ પૂર્ણ કરવા માટે અમારા માનનીય ગૃહ રાજમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબે જો જો અમે સપોર્ટ જો કરે છે આપણી પૂરી ગુજરાત પોલીસના જો સુરત તો અહીંયા ચૂંકે અમારા ધારાસભ્યશ્રી બી છે એમએલએ છે રાઈટ તો વધારે અમે લોકો થોડા સા નજદીક સે કામ બી કરીએ છીએ અને जो सपोर्ट हमें चाहिए हमें જે રીતે आपने बात करें कि हमारी पॉलिटिकल विंग ने सपोर्ट हमारे सीएम साहब ने और एचएम साहब ने जो सपोर्ट મળે છે જો એનાથી લીધે क्योंकि जो ગાળો લોકો ભાડે છે ને સોશિયલ મીડિયા પર આ સીધે પોલિટિકલ વિંગ ને કરે છે પોલીસ નથી કરતા એને ખબર છે કે પોલીસને અમે ગાળો આપીએ તો પોલીસ લઈ જશે પકડીને જો રાઈટ રાઈટ તો આ લોકો પોલિટિકલ વિંગને ટાર્ગેટ કરે લેकिन પોલિટિકલ વિંગ બધા પોતે એના સફર કરે બરદાસ્ત કરે और अपने न बोले भाई देखो आ રીતે અમે ગાળો તો સાંભળીએ છીએ લેकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि તમે રિઝલ્ટ આપો अपनी पब्लिक ने जो भी तकलीफ પડે છે એના તમે સોલ્વ કરો રિઝલ્ટ આપો ત્યારે અમે સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ તો આમાં અમે જોયા कि जो होम मिनिस्टर साहब ने जो अभिगम છે नार्कोटिक्स विरुद्धમાં बहुत क्लियर कट सूचनाओं છે कि कोई भी टॉप टू बॉटम मतलब जो एकदम कार्टेल जो चलावनार चाहे देश में कोई जगह बैठा હોય ત્યાંથી લઈને जो પેડલર છે जो એના વેચાણ કરતા હોય અને એના યુઝર તક જવાના અને टॉप से चालू बॉटम तक जाओ और જ્યારે તમે યુઝરને પકડો ત્યાં યુઝર से टॉप तक जाओ तो એમાં નાર્કોટિક્સ ખતમ હોવા જોઈએ આ હિસાબથી અમે पहले जो क्राइम ब्रांचेस અને એસઓજી નાર્કોટિક્સ बारे में ज़्यादा काम करती थी परंतु અત્યારે जो लोकल पुलिस स्टेशन तक અમે લોકો એમ્પાવર કર્યા એને જ મોટિવેટ કર્યા કે તમે મેક્સિમમ કેसेस કરશો તો અત્યારે આ ગુજરાતમાં જોવો તો પુષ્કળ જો કામ આ રીતે સુરતમાં અમે લોકો ગયા વખતે જેટલા કેસ હતા એના લગભગ 10 ટાઈમ કેસ 3 મહિનામાં વધી ગયા 2024 કરતા 25માં એટલા કેસો મારી પોલીસ કરી પકડી રહી છે અંદર નાખીએ છીએ ટ્રાયલ માટે જો ટ્રાયલો ચાલુ છે સજાઓ બી થઈ રહી છે જો તો એક આ અભિગમ ગૃહમંત્રી સાહેબને ખૂબ સપોર્ટ રહે છે અને જેટલા બી ઓર્ગેનાઇઝ ક્રિમિનલ છે જો કમ્યુનલ હેટ્રેડ ફિલિંગ ફેલાવે છે જો ગુજરાત બિલકુલ ટોલરેટ નથી કરતા એના બી સ્પષ્ટ વોર્નિંગ ઇલીગલ ઇન્ક્રોચમેન્ટ એના માટે બી બરાબર જો હટાવી દેવાના જેટલા બી છે તો એના માટે જો ગૃહમંત્રી સાહેબને પુષ્કળ સપોર્ટ અમે લોકોના મળે છે જો ડે ટુ ડે क्योंकि મુખ્યમંત્રી સાહેબ એટલા બિઝી હોતા હોય છે તો ડે ટુ ડે જો પોલીસિંગ હોય છે એના ગૃહમંત્રી સાહેબ જોતા હોય છે તો અમે લોકોને જ્યારે બી માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે જ્યારે કોઈ ચીજ જરૂર પડે છે 24 કલાક વિધાઉટ એની હેઝિટેશન વિથ ફૂલ પોઝિટિવિટી વિધાઉટ એની બાયસિંગ જો આપણે સીધે સીધે गाइडेंस મળે છે અને એના જ फिर अपना पीठबल रहे છે तो अपनी पुलिस संख्या में भले ओछा છીએ लेकिन मनोबल हमारा लोगों बहुत ज़्यादा છે એઝ ગુજરાત पुलिस એના માટે અમે લોકો अपने ગુજરાત અને ગુજરાતીઓના અને ગુજરાતના બિઝનેસના ગુજરાતના સરહદની સુરક્ષા કરવા માટે પૂરી અમે લોકો મહેનત નિષ્ઠા સાથે કરીએ છીએ એના માટે સીએમ સાહેબ અને એચએમ સાહેબ એના ડબલ પાવર અમે લોકોને મળી જાય છે જ્યારે રાઈટ અને સર એ જે ઇમ્પેક્ટ છે એ વિઝિબલ પણ છે ફોર એક્ઝામ્પલ જ્યારે ગણપતિ મહોત્સવ વખતે એક ઘટના બની હતી કે રાતે ઘટના બની 10 વાગ્યાની આસપાસ ઘટના બને છે 11-12 વાગ્યા સુધીમાં હોમ મિનિસ્ટર સાહેબનું સ્ટેટમેન્ટ આવે છે કે સવાર સુધીમાં ન્યાય થઈ જશે અને આખી રાત હોમ મિનિસ્ટર સાહેબ ફિલ્ડ પર ઘટનાની દેખરેખ કરે છે જે ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય છે એનું અને સવાર સુધીમાં લોકોને ન્યાય મળે છે અને સવારે પાછા હોમ મિનિસ્ટર સાહેબ પોતે આરતી પણ કરે છે અને સર આ એ જ સમય ગાળાની વાત છે જ્યારે કલકત્તામાં પેલો કેસ બનેલો તો સર હું એઝ અ સિવિલિયન આ વસ્તુને નોટિસ કરું તો મને એમ થાય કે બે ખૂણા છે દેશના એક ઈસ્ટ અને એક વેસ્ટ કે વેસ્ટમાં કેવું રાજ્ય છે જે કેવા હોમ મિનિસ્ટર છે જે આખી રાત જાગીને લોકોને સુરક્ષા મળે લોકોને ન્યાય મળે અને એક સેફટીવાળી ફિલિંગ આવે એનું ધ્યાન રાખે છે અને એક બાજુ કેવી ક્રાઇમ થાય છે અને દિવસોના દિવસો સુધી એનું કોઈ નોટિસ નથી કરતા એટલે ત્યારે એવું ફીલ થાય કે આપણે બહુ લકી છીએ કે આપણે આ રાજ્યમાં રહીએ છીએ આપણા તો ગુજરાતના માનની મુખ્યમંત્રી જ્યારે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ હતા ત્યારથી ગુજરાતમાં છે કે નો કમ્યુનલ જોઈએ ઝીરો ટોલરન્સમાં ત્યારે આપણા ગુજરાતનો પ્રોગ્રેસ થઈ છે એના જ ભાગરૂપે અત્યારે બી ચાલુ છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી સાહેબના અને ગૃહમંત્રી સાહેબના અને જ્યારે એવા કોઈ ઘટના બને છે કોઈ તહેવારો ઉપર જો કોઈ પણ તહેવારો મતલબ
અભિગમ તો પોલિટિકલ વિંગને હરદમ રહે છે. કોઈ પણ તહેવાર હોય શાંતિપૂર્ણ ઢંગ से શાંતિપૂર્ણ હોવો જોઈએ, રાઈટ. અને ગણપતિજી બી જ્યારે આ બધા બનાવ બના ત્યારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ તો જે તે વખતે અમે લોકોના કોઈ પૂછે કે તમે લોકો શું જોવો છો જોઈએ જેતા નથી એમ નથી, ત્યારે આ ભાષામાં અને આ ભાષામાં કે જો થયા તો થયા લેકિન અત્યારે નહીં થાય, સારે ગુનેગારો પકડાય એના માટે તમે લોકો પૂરા કોશિશ કરો, એક આ ભાષામાં. આ બંનેમાં અમે લોકોના જ્યારે કોઈ ક્રિટિસાઇઝ કરવાના ચાલુ કરી દે અને જ્યારે કોઈ સપોર્ટ કરે કે જો બી થવા થઈ ગયા છે અત્યારે વધે નહીં અને ગુનેગારો પકડાય લોકોમાં કોન્ફિડન્સ આવે, આ ભાષા પોલીસ સૌથી ગમતી ભાષા હોય છે. તો જ્યારે આપણને સપોર્ટ મળે ફટાફટ આરોપી પકડાય, શાંતિ આવે, આપણા સુરતમાં ફેલે નહીં, કોઈ પસરે નહીં આ પ્રકાર કમનર, ત્યારે અમે લોકોને બતાવે ને કે અમે લોકો ડબલ શક્તિ મળે છે. અને આ જો ઘટના હતી આમાં પૂરા સપોર્ટ હતા કે કોઈ પણ ગુનેગાર બચે નહીં, કોઈ ચમરબંધી અમે ચલાવીશ નહીં. એના જ પરિણામ હતા કે અમારે પૂરી પોલીસ જોઈએ લાગીને અર્લી મોર્નિંગ તો બધા ગુનેગારો પકડાઈ ગયા. અમે લોકો એટલા ઇન્શ્યોર બી કરે કોઈ નિર્દોષ કોઈ સે નહીં આવે, ક્યોંકિ સાથે આ બી સૂચનાઓ હોય કોઈ નિર્દોષ આમાં નહીં પકડાય જાય. તમે લોકો જોજો તો સાચા આરોપીને તાત્કાલિક જો પકડીને લઈ ગયા, રાતમાં આરતી થઈ, ગૃહમંત્રી સાહેબ આરતી ઉતારી અને લોકોમાં ફેથ બી આવ્યા. નેક્સ્ટ ડે એકદમ નોર્મલ થી, અર્લી મોર્નિંગ બધા નોર્મલ થી, બધા કમ્યુનિટી ખુશ, તમામ કોમ ખુશ કે ભાઈ ચલો જેટલા સાચા આરોપીઓ તો પકડાઈ ગયા, ભાઈ કામ ધંધા બિઝનેસ ખુશ. તો એવા આપણા પોલિટિકલ લીડર સપોર્ટ જો અમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. રાઈટ સર, આપનું જે કામ છે એમાં ક્યારેક બહુ હાઈ સ્ટ્રેસ સિચ્યુએશન થઈ જતી હોય કે ક્યારેક કોઈ કેસ સમટાઈમ્સ એ બ્લો આઉટ ઓફ ધી પ્રપોર્શન. તો હાઈ સ્ટ્રેસ સિચ્યુએશનમાં જ્યારે સમયગાળો ઓછો છે, ડેડલાઇન પર કામ કરવાનું છે, ત્યારે કેવી રીતે ડિસિઝન મેકિંગ તમે કરો કે કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખો, એ સ્કિલ મારે જાણવી છે. પોલીસમાં તો એવું છે કે અમે તો સોચવાના ટાઈમ રહેતા નથી. કોઈ ઘટના બની તો ઇમિડિયેટલી અમે લોકોના ડિસિઝન લેવાના છે, ઇમિડિયેટલી એક્ટ કરવાના જોઈએ. કોઈ પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે તમે બોલે કે શું કરીએ કરતા કરતા પ્રોબ્લેમ તુરંત એગ્રીવેટ થાય. અને સિટીમાં તો શું છે કે જિલ્લાઓમાં ચલો ફિર બી એક વખત કોઈ બનાવ બને ધીમે ધીમે લોકો આજુબાજુ ગામવાળા ભેગા થાય છે. સિટીમાં તો વિધિન મિનિટ 5-10 હજાર લોકો એકઠા થઈ જાય છે. તો આપના આ જ હિસાબથી રિએક્ટ કરવાના હોય છે. જો સિટી અર્બન પોલીસિંગમાં કે ઇમિડિયેટલી આપ રિએક્ટ કરો, સોચો રિએક્ટ કરો. હવે એના માટે સૌથી સારા જો હોય છે કે રિએક્ટ એઝ પર ધ લો, એઝ પર અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન. આ જ હિસાબથી સોચો, આ પ્રકારથી ઇમિડિયેટલી રિએક્ટ કરો. અગર અમે બાયસ્ડ પનામાં અમે રિએક્ટ કરીશ જોઈએ તો આ એગ્રીવેટ થવાની છે પ્રોબ્લેમ. તો જ્યારે એવા કોઈ બનાવ બને છે તો અમારા જો ફિલ્ડ લેવલના અધિકારીઓ સીધા ઇન્ફોર્મ કરતા હોય છે કે સાહેબ આ રીતે બનાવ બને શું કરીએ જોઈએ. તો ઇમિડિયેટલી અમે લોકો બોલીએ છીએ કે ભાઈ તુરંત કંટ્રોલ કરો, ફટાફટ અમે તમે એડિશનલ ટીમો મોકલીએ છીએ. લેકિન જબ તક તમે છો તો આ એક્શન લો, જલ્દી લોકોને ડિસ્પર્સ કરો, જો બી તમે લાઠીચાર્જ કરવાના હોય યા જો કરવાના પહેલે તો શાંતિ લાવો તુરંત. જબ તક તમે એડિશનલ રિન્ફોર્સમેન્ટ મળે તબ તક તમે એડ કરો. હું એટલે રાહ નહીં જોઈ શકીશ કે બધા આવશે ત્યારે તમે તબ તક તો મોટી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. તો એક તો હરદમ એવો સિચ્યુએશનમાં હોય છે કે એક્ટ એઝ પર ધ લો. જો લો તરીકે કરીશું તો અમે જોઈએ છીએ કે 99% કેસીસમાં પ્રોબ્લેમ ત્યાં જ કંટ્રોલ થાય છે જબ તક બીજા એડિશનલ અમે નહીં પહોંચીએ. લેકિન અગર જે તે વખતે અમે બાયસ્ડ થઈ ગયા જોઈએ તો જે તે વખતે એક તરફના લોકો બોલે ગયા તો એના સાથે મળીને પોલીસ અમારી સાથે અન્યાય કરી છે તો ઓર પ્રોબ્લેમ જો વધારે થઈ જાય છે. તો એક તો અમે આ ધ્યાન રાખીએ છીએ કે જ્યારે સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન આવે ત્યારે મગજ કુલ રાખીને ડિસિઝન તુરંત લેવાના. ત્યારે તમામ જેટલા બી સિનિયર અધિકારીઓ છે એના ઇન્વોલ્વ કરવાના જોઈએ અને એઝ પર ધ લો જ કામ કરવાના જોઈએ અને પોતે જગ્યા પર જવાના. એવા નહીં થાય ફક્ત નીચેના લેવલ ઉપર છોડી દઈએ. પોતે એઝ એ લીડર ત્યાં પહોંચો અને જब લીડર આવશે તો સાથોસાથ તમારે નીચેને પૂરી કોન્સ્ટેબલરી બી મોટિવેટ થઈ જાય છે, એનર્જેટિક हो જાય છે કે ભાઈ અમારા બોસ બી આવી ગયા છે તો બધા મને કોઈ ચિંતા નહીં. તો એક આ બી જરૂરી છે કે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ પ્રોબ્લેમ આપની હાજરી એઝ પર ધ લો કામ કરવાના જોઈએ અને બધા પક્ષ સાથે એક સરખા વ્યવહાર કરવાના. તો આ અમારે લોકો માટે બહુ મોટા ભાગમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરતી હોય છે. અને સ્ટ્રેસ તો શાયદ पुलिसમાં કોઈ હકારાત્મક ચીજો કોઈ આવતી નથી જોઈએ. हमारे पास जो भी આવે છે નકારાત્મક આવે છે કે ચોરી થઈ ગઈ, લૂંટ થઈ ગઈ, રેપ થઈ ગઈ, મારામારી થઈ ગઈ. લેકિન એના જ્યારે અમે સોલ્વ કરીએ છીએ પ્રોબ્લેમ લો ઓર્ડર કંટ્રોલ કરી દીધા, ગુના ડિટેક્ટ કરી દીધા, આરોપી પકડી દીધા, આ અમારે માટે પોઝિટિવિટી છે કે અમારે જો કિક મળે છે ને, જો એકદમ બોલે છે કે પોઝિટિવિટી મોટિવેશન મળે છે કે આ નેગેટિવ કામના સારું કરી મતલબ ડિટેક્શન કરીને પ્રિવેન્ટ કરીને રોકીને અમે લોકોને સારા ફીલ થાય છે.
तो हमारा जो पॉजिटिव हार्मोन्स जो पुलिसને મળે છે તો આમાં મળે છે કે નેગેટિવને બી સકારાત્મકતા जो है રાઈટ અમે લોકો લાવીએ જોઈએ Right. અને અમારી પબ્લિક આવીને આપણે થેન્ક્સ બોલે કે સાહેબ આપના લીધે અમારા ગુના સોલ્વ થઈ ગયા, મુદ્દા માલ મળી ગયા, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ, પોલીસે સારી કામગીરી કરી. આ જ અમારા લોકો માટે જો કિક હોય છે. વાહ સર, આવનારા સમયમાં સાયબર ક્રાઇમ બહુ મોટો ઇશ્યુ થવાનો છે. ઓલરેડી ખૂબ જ મોટો ઇશ્યુ છે. લાખો કેસીસ બને છે સાયબર ફ્રોડના. અને સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે ક્રાઇમનો વિક્ટિમ અહીંયા હોય અને કલ્પ્રિટ ક્યાંય બીજે હોય કે કોઈ બીજા જ રાજ્યમાં હોય. તો સર, આ ક્રાઇમને સોલ્વ કરવા માટે કે પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ટેકનોલોજીકલી શું એડવાન્સમેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે આપણે? ને અત્યારે સાયબર ક્રાઇમ જો આપ જો એવરી યર 10 ટાઈમ એના પોટેન્શિયલ વધે છે. ઓહો. અને એવરી યર જો 10 ટાઈમ એના જો બોલો ને કે એના સાયબર ક્રિમિનલ્સના જો મોડસ ઓપરેન્ડી આ લોકો ચેન્જ કરતા હોય છે. અમે એના પાસે પકડીએ છીએ, એના પહેલા જો હે બીજા ટેક્ટિક્સ ચેન્જ કરી લેતા હોય. રાઈટ. લેકિન અત્યારે જો અમારી પોલીસ જો છે, લગભગ ગુજરાત પોલીસમાં એવું છે કે અમારે પોલીસ સ્ટેશન તક સાયબર ને એક યુનિટ છે, छोटी छोटी યુનિટ છે હર પોલીસ સ્ટેશનમાં. અચ્છા. બાકી તો સાયબર પોલીસ સ્ટેશન તો સિટી લેવલ પર છે, એક અલગ સાયબર હોય, સેલ અલગ હોય છે, પૂરા એસીપી ડીસીપી બધા છે જો. लेकिन हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर यूनिट છે જ્યાં 5-6 લોકો, એક सब इंस्पेक्टर 5 लोग काम करते જ રહે છે ત્યાં. તો અત્યારે બધા લોકો ટ્રેન્ડ અમારે કોન્સ્ટેબલરી में भी વેલ એજ્યુકેટેડ જો અત્યારે એન્જિનિયર્સ બી સંખ્યા બહુ મોટી છે સબ ઇન્સ્પેક્ટરમાં, કોન્સ્ટેબલ્સમાં, સિનિયરોમાં. તો એક એન્જિનિયરના અલાવા બી ઘણા બધા જો નોન એન્જિનિયર છે એના બી એક બહુ ટેમ્પરામેન્ટ બહુ સારા છે જો સાયબર ક્રાઇમને ડિટેક્ટ કરવા માટે જોઈએ. તો આ લોકો જ્યારે અત્યારે એવું થઈ ગયા છે कि एक तो हमें लोग पकड़वाना चालू करें पूरे इंडिया में कहीं कहीं पर कोने में बैठा हो तो हमें लोग एना तक पहुंची जाइए चाहिए और लोकल पुलिस अपने ना मदद करे क्योंकि एना हमारे यहाँ बैठा हो तो हमें एना मदद करिए. साथों साथ मैसिव अवेयरनेस ना कार्यक्रमों गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार, गुजरात सरकार, पुलिस, बैंक्स, सारे एजेंसीज, इवन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज બધા લોકો અવેરનેસ કાર્યક્રમ ચાલુ કરતા હોય. आप मोबाइल में रिंगटोन देखो तो भी साइबरना प्रिवेंशन માટે ડિજિટલ અરેસ્ટના કેસીસ હોય. અમે સુરતમાં લોકો લખી છે પહેલી વખત પૂરી ઇન્ડિયામાં ડિજિટલ અરેસ્ટમાં અમે લોકો સ્કેચ બનાવીને આરોપીઓને પકડા જોઈએ કે આમાં જો આપકો ડિજિટલ અરેસ્ટ કરતા હોય છે સીબીઆઈ અધિકારી બનીને, पुलिस अधिकारी બનીને, આ પ્રકાર જો બનીને બેઠે છે, એક પૂરા સેટઅપ ક્રિએટ કરતા હોય છે આપણા પોલીસના. અને જો વ્યક્તિ આપના સાયબર મતલબ ડિજિટલ અરેસ્ટ કરીને પૈસા કઢાવતા હોય એના પછી એના બેંકોમાં अलग अलग अकाउंट में पैसा ना खोला ना मास्टरमाइंड तो बीजा होए, लेकिन जो बैसी ना आप साथ बात करे एना स्केच हमें लोग बनाए एना तक पकड़ा जाए. एना एनी नोंद भी ऊपर तक ले पूरे देश में नोंद लेवाई जो है कि भाई एना नहीं छोड़वाना. आ तो हमने बैंक फ्रीज कर दीधा, बैंक अकाउंट होल्डर ने पकड़ी लीधा, मास्टरमाइंड पकड़ा, लेकिन आ क्या गया क्योंकि आ एक करे, बीजा करे, ત્રીજા करे, चौथा लगो न करे ना जो पूरा बेसी बेसी ने. तो અત્યારે जो टीम અહીંયા तक जाए છે कोई ने મૂકો नहीं. અને બેંક ઇવન બેંકો વાળા જો મળેલા હતા એના બી અમે લોકો પકડાય છે કે તમે આડેધડે એકાઉન્ટ નહીં ખોલો જબ તક તમારા કેવાયસી પ્રોપર નહીં, કોઈને એકાઉન્ટ ખોલી દે એકાઉન્ટ ભાડે. અને એકાઉન્ટ ભાડે ઉપર જો આપનારને બી ક્યારેક એ લોકો લાલચમાં આવીને 1000 રૂપિયા મળશે એકાઉન્ટ આપી દે તો એના બી પકડવાના જોઈએ. તો અત્યારે જો અમે લોકો કરીએ છીએ કે છોટા પહેલે મોટા મોટા નહીં નીચે તો પકડો જેથી એના ટોટલ જેટલા સપોર્ટ બેસ છે જેટલા બી એકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાવાળા બેસવાળા બધા બ્રેક થઈ જાય પૂરા. અને बैंकों में भी कोऑर्डिनेशन, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, साइबर यूनिट का कोऑर्डिनेशन इतना सरस થઈ રહ્યા છે કે ઇમિડિયેટલી પૈસા ફ્રીજ કરી દેવાના. આ ગુનેગારોમાં અવેરનેસ બી થાય અને લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી, લેટેસ્ટ ટૂલ અમે યુઝ કરીએ છીએ. અત્યારે ઘણા બધા ખરીદી થઈ રહી છે ગુજરાત ગૃહ વિભાગ દ્વારા. આ બી અમે લોકોને મળી રહી છે. ટૂંક સમયમાં ઓર આપણે એડવાન્સમેન્ટમાં અમે આવશે. અમે લોકો 1 મીટરના પ્રિસિઝન ઉપર બી એના શોધી લઈએ છીએ कि क्रिमिनल क्या बैठा है एना त्याथी अमे लई आवी छीए. तो एटला तक गुजरात पुलिसना केपेबिलिटी है. नो डाउट कि आ लोग एक स्टेप अपने से आगे भागे छे, लेकिन अमे लोग भी एकदम पाछळे छीए एना पकड़वामां. अने साइबर आवनार समय में आप जोशो तो जो जॉब फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, आपने मॉर्फिंग करीने फोटा बताईने एक्सटॉर्शन करवाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सનો उपयोग करवाईने आपने वॉइस क्लोनिंग करीने जो है आपने रिलेटिव से पैसा मांगवाना. आ तमाम ऊपर जो गुजरात पुलिस અને સુરત પોલીસ અમે લોકો લેટેસ્ટ ટૂલ્સના માધ્યમથી એના પર બહુ સારા કામગીરી કરીએ છીએ. લેટેસ્ટ ટ્રેનિંગ અમે લોકો લેતા રહીએ છીએ, अपने आपને અપડેટ કરીએ છીએ. જો એ સેમિનારો થતા રહે છે
અમે લોકો અલગ અલગ સોસાયટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જઈને સેમિનાર લઈએ છીએ, એના કન્વિન્સ કરીએ છીએ કે આ પ્રકાર હોય તો આપ अपने એમ્પ્લોઈઝને બોલો કે કોઈ પ્રકારના પૈસા નહીં આપવાના. સ્કૂલોમાં જઈએ છીએ, જો અમારી આવનાર જનરેશન છે, जो स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे स्टूडेंट है, यंगस्टर છે, जो मोबाइल बहुत फ्रिक्वेंटली યુઝ કરતા હોય છે, ઇન્ટરનેટ યુઝ કરે છે, જો ટાર્ગેટ બની શકે. ઘણા બધા કેસીસમાં આપણા દીકરીઓના જો એ ફોટોના જો ન્યૂડ ફોટો સાથે મિક્સ કરીને બ્લેકમેલ કરે, એના અમે બતાવીએ છીએ કે કોઈ પણ કરે તો તમે કોઈ બિલકુલ પેરેન્ટ્સને બોલીએ છીએ કે તમે કોઈ પણ, ક્યોંકि આ તો શું છે, જબ સોશિયલ સ્ટિગ્મા લાગે ને તો ઘણા બધા કેસોમાં લોકો સુસાઇડ કરી લે છે. તો એના અમે બોલીએ છીએ કે ભલે તમારા ઓરિજિનલી તમારા કોઈ ફોટો જતા રહ્યા છે એ નથી જાય, કોઈ પણ હોય, તમે અમે બતાવો, અમે તો આ રીતે ટ્રીટ કરીશું, તમારે મોર્ફિંગ થઈ છે. અમે બધાને બોલીશું કે મોર્ફિંગ કરીને કોઈને ફોટો કોઈ ઉપર મૂકી દે, અમારા ફોટો કોઈ ઉપર મૂકી દે છે, એના માટે કોઈ સોશિયલ સ્ટિગ્મામાં અમે દૂર કરી દઈએ છીએ. તો આ તો સ્કૂલ કોલેજ પેરેન્ટ્સ તક અમે લોકો જઈએ છીએ. અમારા સ્કૂલોમાં અહીંયા ફંક્શન થાય છે, એન્યુઅલ ફંક્શન में અમે લોકો ચીફ ગેસ્ટ તરીકે જઈએ છીએ, તો બધા અમે લોકો ત્યાં બોલીએ છીએ. આ બધાને બતાવીએ છીએ કે ભાઈ દેખો, પેરેન્ટ્સ બધા છે, હજારો લોકો હોય છે કે તમારા દીકરા દીકરીઓને કોઈ આ રીતે આવે ને તો માનવાના નહીં, આ બધા મોર્ફિંગ કરેલા હોય છે, તો વિશ્વાસ નહીં કરતા બિલકુલ. જેથી આપણા કોઈ સે ગલતી બી થયા હોય, કોઈ આપણા ન્યૂડ ફોટો કોઈને મોકલી પણ આપ્યા હોય, સામેવાળા બ્લેકમેલ કરે, તો બી એના બાળકોના આ વિશ્વાસ રહે કે અમે તો પોલીસ મોર્ફ ફોટો તરીકે જ અમે ટ્રીટ કરશે, અને અમારી કોઈ બી જો મન में હોય કે ભાઈ અમારા શંકા એનાથી દૂર કરે. તો એના દિશામાં બી કામગીરી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ચાલી રહી છે, અને રિઝલ્ટ પણ મળી રહ્યા છે કે થોડા નંબરો ઓછા થઈ રહ્યા છે. નંબર અત્યારે લોકો ટ્રેપમાં નથી આવતા, તુરંત આપણને બતાવે છે, સાયબર હેલ્પલાઇન પર બતાવે છે લોકો 1930. તો એક આ સારા કામગીરી થઈ રહ્યા છે. સર, આપની કામગીરીમાં એક ખાસિયત મને જોવા મળે છે કે યુ ટ્રુલી બિલીવ ઇન પબ્લિક અવેરનેસ, કે જ્યાં જ્યાં પોસિબલ હોય, જે માધ્યમથી અને જે ઓડિયન્સને મેસેજ પહોંચાડવાનો હોય, કે ક્રિમિનલ્સને અલગથી મેસેજ પહોંચે, સિવિલિયન્સને અલગથી મેસેજ પહોંચે, પેરેન્ટ્સને અલગથી મેસેજ પહોંચે, યંગસ્ટર્સને અલગથી મેસેજ પહોંચે. સર, પબ્લિક અવેરનેસની મારું એવું માનવું છે કે ક્રાઇમ પ્રિવેન્શનમાં બહુ મોટી ભૂમિકા, ખૂબ જ મોટી ભૂમિકા છે. અને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ પબ્લિક ને જે અવેર કરો છો કે ક્રાઇમ કેવી રીતે થાય, ક્રાઇમ થઈ ગયા પછી શું કરવાનું, અને કેવી રીતે ગભરાવાનું નહીં, ને પોલીસ સપોર્ટ કરશે, અહીંયા ઊભી છે, એ ખરેખર બહુ સરાહનીય વાત છે. સર, એના માટે બતાવું કે માનનીય મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જબ અહીંયા સીએમ હતા, તો જે તે વખતે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી એક નામથી કમ્યુનિટી પોલીસિંગ માટે બધા લોકો, हम लोग अलग अलग यूनिट कम्युनिटी पुलिसिंग करता था अलग, लेकिन फंड नहीं था हमारे पास. तो जेते वक्त सीएम साहब अपने ना फंड आप्या, लगभग 17-80 करोड़ रुपया तक ग्रांट પબ્લિક અવેરનેસ માટે, કમ્યુનિટી પોલીસિંગ, તમે પબ્લિક પાસે જાઓ, રાઈટ, હર યુનિટને પૈસા મળવા જોઈએ, વાહ, પબ્લિક તક તમે પહોંચો, क्योंकि તમે પબ્લિક તક નહીં જશો જો હે તબ તક પબ્લિક हमारे जो मन में છે ને જો હે, રાઈટ, पुलिस से दूर रहो, पुलिस એમ છે તેમ છે. તો આ પ્રોગ્રામ પૂરા ગુજરાત પોલીસે ખૂબ સરસ રીતે કમ્યુનિટી પોલીસિંગ ચાલુ કરે. હું જો મારા પર્સનલ એવું માનવું છે કે સુરતમાં 90 લાખ જો પોપ્યુલેશન છે, તો એવરી યર हमारा તમામ પ્રકારના ક્રાઇમ, સિરિયસ ક્રાઇમ से લઈને ઇવન દારૂ પીધેલામાં જો પકડાય, જો જુગાર રમતા, ભલે પેટી ઓફેન્સીસ છે, આ બધા મર્ડર જુદા હોય છે, આ બધા અલગ હોય છે, તમામ પ્રકારના ઓફેન્સ, ટ્રાફિક વાયોલેશન, ટ્રાફિકમાં કોઈને જઈને ઠોકી દીધા, આ પ્રકારના બી FIR થઈ હોય તો બધા અમે કરીએ તો અમારા 30-35-40 હજાર જેટલા લોકો ઉપર જો અમે ગુના દાખલ કરીએ છીએ સાલ ભરમાં. તો 40 का मान लो फॉर एग्जाम्पल 50-60 हज़ार मानिए जो है, तो 90 લાખમાં 60,000 કેટલા પર્સન્ટેજ થયા? લેસ ધેન 1%. તો અમે બધા અમારા અધિકારીઓને આ બોલીએ છીએ, તમામ જો અમારી બ્રીફિંગ, હું પોતે બધાને રોલ કોલમાં જઈએ છીએ હર પોલીસ સ્ટેશનમાં, તો કોન્સ્ટેબલ લઈને બધા અધિકારીઓને આ જ કરીએ છીએ કે સુરત શહેરમાં એવરી યર 1% લોકોને પોલીસ પકડે છે. પોલીસ એના જો અલગ અલગ ગુનામાં અરેસ્ટ કરે, ચાર્જશીટ કરે. આમાં પેટી ઓફેન્સીસ વધારે પેટી ઓફેન્સીસ છે, રાઈટ. તો 99% પબ્લિકનો શું વાંક છે, એના અમે બધા ક્રિમિનલ તરીકે ટ્રીટ કરીએ, બધાને એક જ ધોકા से આંકીએ, આ બરાબર નથી, રાઈટ. हमारा 1% સાથે જો તમે કરવાના કરો, लेकिन 99% जो हमारे पब्लिक છે એના તક અપ્રોચ કરો, એના બતાવો અમે તમારા મિત્ર, હું તમારા મિત્ર છું, હું તમારે તક આવ્યો છું, તો તમે આપણી પ્રોબ્લેમ બતાવો. મને ખ્યાલ છે કે એક વખત રાજકોટમાં જો રાજકોટના હાર્ટ છે રેસ કોર્સ છે, રેસ કોર્સ 3 કિલોમીટરના પૂરા પેરીમીટરના રેસ કોર્સ, બધા લોકો બેઠે છે, સાંજે આનંદ કરતા હોય. તો જનરલી શું છે કે ત્યાં લોકો બેઠે તો કોઈ પર્સ ચોરી થઈ જાય, કુછ એવો બનાવ બને છે. તો
બધા પોલીસના અમે એક અલગ સે ટીમ બનાવી હતી, બધા લોકો ફરતા રહો, લોકો જોતા રહો, કોઈ ઇસ तरह આ પ્રકારના એન્ટી સોશલ નહીં આવે. તો અમારા અધિકારીઓ ફરતા હતા, પીઆઈ અને બધા લોકો ફરતા હતા. તો ત્યાં અમારા એકદમ સિનિયર સિટીઝન, અમારા વડીલો 70-80 સાલની ઉંમરવાળા એના ગ્રુપ બેસે ત્યાં, મજા કરે, સાંજે ખૂબ સરસ હવા ચાલે. તો બેઠા હતા. તો એક દિવસ આ બેઠા હતા તો આ લોકો બોલાયા અમારા પીઆઈને કે દીકરા અહીંયા આવો તમે. તો ગયા અમારા પીઆઈ વગેરે. બોલો શું થયા કાકા જોઈએ? બોલો આ શું કરો છો તમે, રોજ ફરો છો અહીંયા જોઈશું? બોલો કાકા અમે ફરીએ છીએ કે જ્યારે કોઈ ચોર, પીક પોકેટર, ઉચક્કા આવીને કોઈ ચોરી કરીને જતા રહે છે એના અમે શોધતા રહીએ છીએ, એના કરીએ છીએ. બોલા બરાબર છે, લેકિન તમે કોઈ દિવસ ચોરો માટે તો તમે ખરો છો, કોઈ દિવસ તમે વિચાર્યા જોઈએ કે જો અમે લોકો જેવા નાગરિકો જેના કભી કોઈ કાયદા આપણે હાથ લેતા નથી, હમારી શું જરૂરત છે, તમે કોઈ દિવસ તમે અમારે તો પૂછા જોઈએ? તો બોલા કે નહીં જોઈએ, અમે તો બસ ચોર બોલે ને, પોલીસ શું કરે, ચોરને પકડે મેન્ટાલિટી છે. લેકિન જો સારા લોકો, જો લો એબાઇડિંગ લોકો, એના માટે એની શું તકલીફ છે તમે કોઈ દિવસ પૂછ્યા? બોલા નહીં. આ વાત મને મારા પીઆઈ બધા સર આજે વડીલો આ રીતે વાત કરી છે જોઈએ કે તમે જો સારા લોકો કોઈ મળતા નથી, કોઈ પૂછતા નથી, તો મને લાગે કે નહીં, એના બહુ મોટો એક મેસેજ છે. તો ત્યારે અમે સ્ટાર્ટ કર્યો ભાઈ કે હર સોસાયટીમાં જવાના, તમામ લોકો જઈને સોસાયટી વાળા સાથે મળો, બેઠો, ચાય પાણી પીડો, એને પૂછો કે ભાઈ કોઈ તમે કોઈ સમસ્યા તો નથી? ક્યારે ક્યારે શું થાય છે કે એક સોસાયટી છે, સોસાયટીમાં 100 બંગલો છે. આ બંગલા એક બંગલાવાળા એવું છે, ગાડી રોડ ઉપર પાર્ક કરી દે, નીકળે તો બાળકોને પીટે, ગાળો બાળે, દારૂ પીને છાકટા બની જાય, લેકિન કોઈ સોસાયટી વાળા કમ્પ્લેન નહીં કરે. પોલીસના ચોપડા ઉપર કોઈ કમ્પ્લેન નહીં આવે, 100 નંબર પર કોઈ કમ્પ્લેન, લેકિન સોસાયટી ત્રસ્ત હોય. આ રીતે ક્યારે ફ્લેટ હોય, 40 લોકોનો ફ્લેટ છે, એક ફ્લેટ વાળા કभी લિફ્ટ ચાલુ કરીને ભૂલી જાય, લિફ્ટ ઉપર નીચે કરે, ગાડી એવા જગ્યાએ પાર્ક કરે જો કોમન જગ્યા હોય અને માથાકૂટ, લેકિન સોસાયટી વાળા ડરના મારે નહીં કરે. તો આમ કે આ બહુ મોટી એક ત્રાસ છે આ લોકો માટે. સાચી વાત છે. અને આ ત્રાસ ત્યારે દૂર થશે જ્યારે અમે સારા લોકોને વચ્ચે જઈને બેઠીશ અને પૂછીશ કે તમે કોઈ તકલીફ તો નથી? ભલે પોલીસને ચોપડે FIR નથી કરવાના, લેકિન ઘણી બધી ચીજો એમને સોલ્વ થઈ જાય. તો અમે ચાલુ કરે ત્યાં રાજકોટમાં સોસાયટી ફરવાના. લોકોને પહેલે તો આશ્ચર્ય, શું થઈ ગયા, શું અમારા સોસાયટીમાં પોલીસ આવી? ત્યારે એને બોલા ભાઈ અમે એના માટે નથી આવ્યા, એના માટે આવ્યા છે કે તમે સારા લોકો છો, તમે કાયદા કાનૂન પાલન કરો છો, લેકિન તમે કોઈ તકલીફ છે તો બતાવો. તો ઘણા બધા લોકો બધા લાઇટનો પ્રોબ્લેમ છે, ટ્રાન્સફોર્મર અહીંયા નહીં લગાવી નથી, અમારા નલ કપાય, આ પ્રકારના બી પ્રોબ્લેમ આવે જો અમે લોકો કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટ બતાવે. લેકિન આમાં 1-2 લોકોના વજહ છે જો સોસાયટી હેરાન થતી હતી, આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ. વાહ. તો એના લઈને જો અનુભવના પ્રમાણે અમે બહુ માઇક્રો લેવલનું થિંકિંગ થઈ ગયું એકદમ સુરત અમે કાકા લોકોના માધ્યમ જાણવા મળ્યા, અમારા રાજકોટના વડીલો માધ્યમ જાણે કે તમે અમારે તો પૂછો, અમારી શું જરૂર છે. તો અહીંયા અમે લોકો જ્યારે કમ્યુનિટી પોલીસિંગ કરીએ છીએ, આ સ્વચ્છતા સેતુ સોસાયટીને એના માટે જિક્ર કર્યા કે ત્યાંથી સ્ટાર્ટિંગ થઈ, ત્યાંથી આપણને ફંડ બી મળે, લોકોના ચાય પાણી નાસ્તા કરવા માટે થોડો બધો અમને ફંડ બી મળે આ સોસાયટીમાં. આ ક્રાંતિકારી વિચાર નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો એ સમયે. વાહ. 80 કરોડ રૂપિયા આપ સમજી શકો છો, વાહ, કેટલી મોટી રકમ પોલીસને મળી કે તમે પબ્લિક તક જાઓ. અને એના પછી જો આ કલ્ચર ગુજરાત પોલીસમાં ચાલુ થયા, અમે લોકો સુરતમાં રોજ એવરી ડે અમારા ટીમ નીકળે છે, પોલીસ સી ટીમ નીકળે, આ લોકો વાતો કરે, લોકો મળે, લોકોને બતાવે કે ભાઈ સિર્ફ જો તમે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે જ અમે નહીં આવીશ, અમે એમને જ બી તમે મળતા રહીશ, તમારે પૂછો તો મને કહેજો. તો અમે તો યાદ છે કે અત્યારે અમારા જો સિનિયર સિટીઝન છે, આ હકના સાથે અમારા પોલીસ ટીમને ફોન કરે છે કે અમારે ચાવલ ખતમ થઈ ગયા છે, મોકલી આપો, આજે ડોક્ટરને જવાના છે, વીજળીના બિલને શું થયા. મારા લોકોને ખૂબ ગમે છે કે અમારા સિનિયર સિટીઝન એટલા ભરોસા રાખે છે, એના ઘરમાં કોઈ નથી, લેકિન અમારા પોલીસ એના દીકરા દીકરીઓ બનીને એની સેવા કરે, એનાથી વધારે સારી કોઈ કુછ નથી. તો કમ્યુનિટી પોલીસિંગ સૌથી સારી છે કે અમે પબ્લિક તક પહોંચીએ અને પબ્લિક સાથે વાતો કરીએ, શેર કરીએ. ઘણા બધા ચીજે પેપર ઉપર નથી આવતી, પરંતુ મળવાથી કામ થઈ જાય. સર, હું જ્યારે આપના વિશે રિસર્ચ કરતો હતો ને, ત્યારે પીપલ ફર્સ્ટ પોલીસિંગમાં તમે માનો છો, કોલેબોરેશન અને ટીમ વર્કમાં તમે માનો છો, પણ પીપલ ફર્સ્ટ પોલીસિંગ શબ્દ મને અટ્રેક્ટ કરી ગયો અને મેં વિચાર્યું હતું કે હું આપને પૂછીશ કે આ પીપલ ફર્સ્ટ પોલીસિંગ શું છે. અને આપે જે કહ્યું સર, ખૂબ જ ક્રાંતિકારી વિચાર છે. એક સૂક્ષ્મ લેવલ પર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ કે જે લોકો કોઈને કહી જ નથી શકવાના કે આવી નાની વસ્તુમાં શું પોલીસને કમ્પ્લેન કરવી, પણ લોકો રોજે હેરાન થતા હોય, તો એ પણ પ્રોબ્લેમ આપે વિચારીને એમની માટે સોલ્વ કર્યા સર, બહુ મોટી વાત છે. લોકો શું છે એમને બતાવે ને, કોઈ જરૂરી નથી કોઈ ક્રિમિનલ થી, રાઈટ, ખુદ સોસાયટી રહેનાર વ્યક્તિ કોઈ ગેટ લગાવી દે, રાઈટ, આપણે બંધ કરી દે, કોઈ કોમન પ્લોટ પર ગાડી ઉભી રોજ રાખે છે, કોઈ બાળકો રમે તેના
बेलाफा मारी दे जो है तो આ બહુ છોટી ચીજો છે રાઈટ લેકિન ઇતની ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જે તે સોસાયટીના લોકો માટે હોય છે ને તો કે હું અહીંયા બેઠું છું જ્યારે મળું છું બધાથી તો ઘણા બધા ડેલિગેશન બી આવે છે આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ લઈને આવે એને ખબર પડે ને મારો ફ્લાઇટ વાળા આ કરે છે સર ધીસ ઇઝ ક્રિમિનલ ઇન મેકિંગ આવા લોકો એવા હોય છે કે જે ક્યારે પણ બની જાય ને લોકો કંટાળીને રાઈટ અચ્છા માન લો કોઈ એક્ઝામ્પલ કોઈ બાળકને લાફા મારી દીધા હા કાન ફાટી ગયા બાળકને પડી ગયા તો મોટા ક્રાઇમ બી થાય એના બી બચાવ એવું છે કે પોલીસ ઇન્ટરવીન કરે સાચી વાત કરે और हमारा जो अभिगम છે કે 99% लोग કોઈ ક્રાઇમ નથી કરતા તો એના બધા એક સરખા નહીં જોવાના એના સાથે એકદમ પ્યાર સે વાત કરો અને કોઈ તમે કોઈ એગ્રેસિવ થઈને વાત કરે પબ્લિક આવે છે તો અમારે यहाँ કોઈ ખુશી તો આવતા નથી એના સાથે લૂંટ થઈ હોય ચોરી થઈ હોય બાળકો ગુમ કોઈ સમસ્યા લઈને મારા સમસ્યા લઈને આવે તો કઈ સ્ટેજ આ માઇન્ડમાં છે આપણને ખબર નથી ઉગ્ર છે બીપી હાઈ એના હોય ડાયાબિટીસ પેશન્ટ હોય તો તમારી સાથે ઉગ્રતા સાથે વાત કરે ને એના આધર વેમાં નહીં લોકો તમે દબાવવા માંગે છે બલકી આ પોતાની વ્યથા તમે ઠાલવે છે તમે એના સારી રીતે બેસાડો પાણી પીલાવો ફિર એના તમે વાત કરો તો આ અપ્રોચ લઈને તમે ચાલશો અને અત્યારે બહુ સારી ફોર્સ આવે છે અમારા અધિકારીઓ વેલ એજ્યુકેટેડ બી છે અનુભવવાળા બી છે તો આ લોકો આ ચીજો સમજે છે કે અમારે પાસે કોઈ રાજી ખુશી ગપ મારવા માટે નહીં આવે પોલીસ પાસે જો દુઃખી હોય આ જ પોલીસના પગથિયા આવે બધા સમાધાનની પ્રક્રિયા બી કરી લીધા હોય સમાધાન નહીં થયા હોય ત્યારે આપણે પગથિયા ચડે તો એના માનસિક સ્થિતિ બરાબર ક્યારેક નહીં બી હોય તો તમારા સાથે ઉગ્રતા સાથે વાત કરો તો બી એના પ્યારથી સાંભળો એને તમે ઉલટા ચડી જાઓ એના ઉપર એવો નહીં કરે ક્યારેક એવું થઈ જાય છે પોલીસ મિસબિહેવિયર અત્યારે અમે લોકોને ખુશી આ બાતને છે કે નામદાર જો ઓનરેબલ હાઈકોર્ટની સૂચના થઈ જો હે કે તમામ પોલીસને પીઆઈ ને ચેમ્બરથી માંડી બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં વોઇસ રેકોર્ડિંગ વાળા કેમેરા સીસીટીવી કેમેરા છે जो पीएसओ અને પીઆઈ કેમેરા વોઇસ રેકોર્ડિંગ સાથે કેમેરા બાકી જગ્યા લાગે જેથી પબ્લિક શું વાતો કરે અમે શું વાતો કરીએ આ બી રેકોર્ડિંગ થાય છે તો જેના લીધે પોલીસ બિહેવિયર ઉપર બી બહુ રાઈટ બહુ સોફ્ટ સ્કિલ ઉપર બહુ ફરક આવ્યા છે અને અમે બી ખૂબ ગમે છે કે શાંતિ સાંભળો અને જ્યારે અમે જોયા કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયાના જમાના છે હર સારી ચીજના નોંધ કहीं ना कहीं से सोशल मीडिया में આવી જાય છે તો જ્યારે અમારે કોન્સ્ટેબલ કે બારે में સારા આવે તો અમે લોકોને ગર્વ થાય કે અમારા પોલીસ ક્યારેક એવું થાય તો લોકો અમારા ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવે ત્યારે બોલે મારા તો ઠીક તમે અમારા કોન્સ્ટેબલને બી ઇન્ટરવ્યુ એના લોકો કે આ કામ કરવા વાળા અમારા સોલ્જર આ છે તો બધા જો નોંધ બી લેવાય છે સારા અને નબળા બંને પહેલુઓના સારા લઈને ખૂબ લોકોના મોરલ બી બુસ્ટ થાય એકબીજાના બળે કે અમે બધાને બોલીએ છીએ કે તમે अगर महीना में भी एक सारा काम करो हर एक महीना में एक सारा काम मतलब कोई ने रोड क्रॉस कराई दीधा कोई थी प्यार से बात करना चाहिए अभी सारा काम है તમે ગણી લો કોઈ જરૂરી તો ડિટેક્ટિવ ગુના ડિટેક્ટ કરો ચોર પકડી લો અભી નહીં તમે એટલા જ કરી શકો કે પ્યાર से बात કરો કોઈને પાણી પીવડાવી દીધા કોઈને રોડ કોઈ કરી દીધા જો આ સારા કામ કરો તો 6500 पुलिस फोर्स છે અમારે અહીંયા કેટલા સારા કામ થાય 6500 સારા કામ થાય વાહ એક જ કામ એટલો જ નાના કરવાનો કોઈ જરૂર નથી કે તમે ખૂની પકડી લીધા આ સારા કામ છે પ્યાર से बात કરી લીધા આ બી સારા કામ છે સર મેસેજ કેટલો પોઝિટિવ લોકોમાં પહોંચે અને કેવું પોઝિટિવ વાતાવરણ ક્રિએટ થાય કે લોકોમાં એક ડર હોય છે કે ભાઈ પોલીસથી દૂર રહેવાનું જેવી રીતે આપે કહ્યું એમ પણ જો આવું થવા માંડે તો લોકો થોડા વધારે કનેક્ટ થાય અને પીપલ ફર્સ્ટ પોલીસિંગ આને જ કહેવાય સર અને આપના પોડકાસ્ટના માધ્યમથી એક આ બાત અમે પેરેન્ટ્સ સાથે શેર કરવા માંગી છે શ્યોર સર કે નાનપણથી એવું હતા કે મા બાપ શું બોલે બહાર નહીં જતા ને પોલીસ પકડી જશે મા બાપ તેના માટે બોલતા હતા કે ભાઈ અમારા બાળક કઈ ઘર દૂર નહીં જાય એના સેફટી માટે બોલતા હતા જો યા ક્યારેક એના બીવડાવવા માટે મજાકમાં બોલતા હતા કે બાળકોને મનમાં બેસાડી લે છે તો જ્યારે અમે જો કન્યા કેળવણીના કાર્યક્રમો થાય ને સ્કૂલોમાં તો એના પૂછતા હતા કે ભાઈ જ્યારે અમે લોકો બધી જગ્યાએ જવાના હોય તો પૂછીએ ભાઈ પોલીસ શું કરે છે બધા બાળકો બોલે પોલીસ ચોર પકડે છે તો બધા મનમાં એવું છે પોલીસ ચોરે પકડે છે પોલીસ મિત્ર છે અમારા આ કોઈ બાતે નથી કરતા હતા બાળકો સાચી વાત છે તો ત્યારે અમે બધા પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે આપ अपने બાળકોને બિલકુલ આ નહીં બોલો કે તમે બહાર જશો તો પોલીસ પકડી જશે પોલીસ ચોર બલકે ચોર પકડે છે પોલીસ એવા નહીં બોલો બલકે આ બોલો કે પોલીસ તમારી મિત્ર છે તમે જ્યારે પણ તમે જરૂરત લાગે તમે પોલીસ પાસે જાઓ પોલીસ અંકલ પાસે જાઓ કે પોલીસ તમે ખૂબ સારી રીતે તમે સાંભળશે આ પ્રકાર આપ એના વાત કરો છો કે આ બચપનથી અમે મને પણ બીવડાવવામાં આવતા હતા કે તમે બહાર જશો પોલીસ પકડી જશે તો એવા નથી જોઈએ તો પેરેન્ટ્સ રિક્વેસ્ટ છે કે સમય ગયા आप जो पुलिस आपने मित्र से आप प्रकार बालकों ने आप बोलो जो सर पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो
पुलिसिंग लॉ इन्फोर्समेंट इंडिया में बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है और जो नई न्याय संहिता आएगी उससे और इम्प्रूवमेंट्स होंगे। तो सर आप हमें बताइए कि नई भारतीय न्याय संहिता से लॉ एंड ऑर्डर में क्या चेंज होगा, इन्फोर्समेंट में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, पुलिसिंग कैसे इम्प्रूव होगी? जो नए अपने कायदे बने हैं बीएनएस और बीएनएसएस बनाए गए, उसमें न्याय संहिता से पहले आप देखें तो दंड संहिता थी जो है, दंड करने का उसमें प्रोविजन था, लेकिन अब न्याय संहिता मतलब पहले दंड मतलब आरोपी ओरिएंटेड, एक्यूज ओरिएंटेड था, इसको दंड करने का है। अब न्याय संहिता मतलब कि हमें जो विक्टिम है उसको न्याय दिलाना है। अच्छा। तो उस न्याय संहिता बनाए के नाम भी इसलिए चेंज किया गया कि हम न्याय की तरफ जा रहे हैं, और दंड तो एक एक्यूज आता है लेकिन न्याय हमको देना है पब्लिक को जो है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें स्पीडी ट्रायल्स का, जो खास करके जो ट्रायल्स के बारे में होता था कि किसी न किसी रीजन की वजह से ट्रायल में डिले हो जाया करता था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि इतने दिन में हमको चार्जशीट होगी तो इतने दिन में चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो ट्रायल्स चालू हो जाएंगे जो है। तो जो पब्लिक को जो एक तकलीफ और कंप्लेन होती थी कि बहुत डिले हो रहा है, और डिले को हटाया गया। प्लस पूरे इन्वेस्टिगेशन के समय जो है पब्लिक को कुछ भी उनका जानने का हक है कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, एक वो भी उनका हो गया। और पब्लिक पूरी जो हमारा विक्टिम, पब्लिक मीन्स विक्टिम, जो पूरा विक्टिम ओरिएंटेड ही पूरा लाया गया उसमें। अच्छा। और बहुत सारे सेक्शन ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं जो है, एक 111 और 112 सेक्शन है बीएनएस का, जिसके अंदर जो बार बार गुनाह करते हैं, एक बार किया फिर दोबारा किया, उनके वो सेक्शन लगाने से उनके बेल भी मिलना मुसीबत हो जाती है। अच्छा। मैं हैबिचुअल टाइप के वो हो गए। राइट। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस भी आए हैं कि जो एकदम गुनहगारों को एकदम बराबर सकंजे में लेते हैं। और ट्रायल में भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का पूरा हो गया कि पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में बहुत सारे इंडियन एविडेंस एक्ट देखते थे उस समय। अब इनमें जो कायदा नया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आपके जो व्हाट्सएप पे जो चैटिंग हो गई, दूसरे एविडेंस हो गए, बहुत कुछ मान्य हो गए। प्लस आप ई साक्ष्य उसमें आ गया कि आप जगह जाके बहुत सारा पेपर वर्क नहीं करना, बहुत जाके जो आपको हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक गजेटरीज दी गई हैं कि जगह पे जाने का वहीं पंचनामा कर देने का, स्टेटमेंट भी हो जाए उसी के अंदर फिट करते हुए पूरा काम हो गया। तो जो पेपरलेस जो उसके तरफ भी जाने, पहले 10-10 हजार पेपर की चार्जशीट हम लोग जिराक्स करके सबको देते थे। राइट। अब वो सब चीजें उसे ये सब हटा के ये सब जो चीजें लाई जा रही है जो है, तो वो बहुत एक क्रांतिकारी ये नए जो न्याय संहिताएं आई हैं, वो जो पार्लियामेंट में पास हुई, जो गुजरात में खूब अच्छे से इफेक्टिवली हम लोग लागू कर रहे हैं। और उसके बदौलत ही अब जो विक्टिम को न्याय की दिशा में पूरा ओरिएंटेशन हमारा न्याय के डायरेक्शन में चला गया है जो। तो आने वाले समय में भी आप देखेंगे जो है कि हमारी जो दंड संहिता से न्याय संहिता कहीं पूरा शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव हो गया सर। पब्लिक मतलब विक्टिम ओरिएंटेड पूरा कर दिया पूरा। उनको बहुत प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीजें, बहुत अधिकार दिए गए हैं विक्टिम को जो है। और हम लोग को भी टाइम बाउंड में बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं कि अब टाइम बाउंड में चलेगा, इतने समय में कर देने का, इतने समय में ट्रायल्स भी होने लगेंगे, चार्जशीट, चार्ज फ्रेम, बहुत कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। तो आने वाले समय में ये भारत देश के लिए एकदम क्रांतिकारी रहेगा। वाह सर, अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई मिसकंडक्ट होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल ह्यूमंस, राइट? सो अगर डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई मिसकंडक्ट होता है, हाउ डू यू एज ए लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ द सिटी डील विथ इट? जनरली मिसकंडक्ट के बहुत सारे जो इंसिडेंट रिपोर्ट होते रहते हैं, पब्लिक की कंप्लेन भी आती रहती है। उसमें एक तो मिसबिहेवियर का, मिसबिहेव किया, कई बार होती कि पिटाई कर दिया, गाली दिया, और कोई पब्लिक आया उसको निकाल दिया बाहर का, इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन। या बाहर जाए कोई ऐसी अवस्था में पुलिस वाला पकड़ा जाए जो कि डिपार्टमेंट को शोभा नहीं दे, जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कई बार आती है। तो हम लोग के लिए भी, पूरे फोर्स के लिए एज ए यूनिट, हम लोग यूनिफॉर्म सर्विस है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम सब का अस्तित्व है इसमें। अकेले पुलिस कमिश्नर का अस्तित्व नहीं, कांस्टेबल नहीं, लेकिन हम सभी का अस्तित्व है जो है। तो उसमें हम लोग सारे लोग उस समय जो है डिमोरलाइज फील करते हैं, और एकदम लगता है कि इसकी वजह से इंसल्ट हम लोग की हो गई। क्योंकि आप देखिए कभी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो 1-2 लोग की बदौलत ये होता है जो है। 6,500 हमारी फोर्स है, उसमें सभी लोग नहीं करते, लेकिन 10-20 लोग ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसा न्यूज़ बन जाता है कि मतलब पब्लिक की नज़र में हम लोग डिसिप्लिन हैं, डिसिप्लिन फोर्स के भाग हैं, और हमें ये काम नहीं करना है जिसके वजह से ऐसी चीज़ें हो।
और बात भी सही है एकदम जो है, लेकिन जब हमारे में से कोई एक कर जाए तो वो बड़ी न्यूज बनती है। राइट हमारा एक अच्छा बिहेवियर, 100 अच्छा बिहेवियर एक गलत काम की वजह से खराब हो जाता है पूरा। राइट तो ऐसे केसेस में भी हम लोग ऐसे लोगों को पब्लिक से दूर के जॉब में रखते हैं, इनको पनिशमेंट भी करते हैं, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चलती है, इनका सस्पेंशन भी होता है जो है, इनके पे इंक्रीमेंट वगैरह भी हम लोग ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जो फैक्ट है उनके हिसाब से एक्शन भी होते हैं। बहुत सारे लोग को टर्मिनेट भी कर दिया जाता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में, सब होते हैं इनके विरुद्ध में। लेकिन इतना होता है कि उस समय वो डैमेज हमारा कर जाते हैं वो। राइट तो इनके लिए चलता है और हम लोग इस चीज़ों को हरदम देखते हैं कि हमारा जो पब्लिक है जो सुबह शाम तक दौड़ रही है, मेहनत कर रही है, काम कर रही है, वो पैसा कमा रही है, टैक्स दे रही है, उस टैक्स से हमारा घर चल रहा है, हमें जो सुविधाएं मिल रही है टैक्स से, तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करने का। राइट तो कोशिश भी हम लोग पूरी करते हैं। ट्रेनिंग का भी बहुत सारा भाग है इसमें जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए है, और बहुत कम भी हो रहा है, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम हमारे हैं। लेकिन वो ऐसे लोग जो है अलग अलग हम लोग आइसोलेट ऐसे लोगों को करते जा रहे हैं और कोशिश करते हैं वो पब्लिक के साथ दोबारा इंटरेक्ट ना करें, ऐसी जगह पे उनको हम लोग ड्यूटी देते हैं। राइट सर, एक तरीके से देखें तो आपके काम में बहुत सारे नेगेटिविटीज़ हैं, राइट? कोई समस्या हुई, कहीं पे कुछ क्राइम हो गया तो आपके पास बात पहुंचती है। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। कभी कभी जो अभी हमने ये पॉडकास्ट में जो केस के बारे में बात की, अगर ऐसा केस चल रहा हो, मैं तो सोच ही नहीं पाता कोई व्यक्ति अगर जो ये केस पे काम करे अपने आप को डिटैच कैसे कर पाए। तो सर, आप ये स्ट्रेस से बाहर कैसे आते हैं? आप स्ट्रेस से अपने आप को डिटैच कैसे करते हैं? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? जनरली पुलिस में तो बोलते हैं कि एक केस बड़ा केस हुआ, उसको डिटेक्ट करने के बाद दूसरा केस नहीं आएगा, ऐसा तो होता ही नहीं। राइट और फिर कोई न कोई चीजें और आई जाती हैं जो इसमें। राइट तो उसमें जनरली हम लोग देखते हैं सभी लोग, जितने लोग हमारे सब पब्लिक हो, पुलिस हो, सब एक ही जैसा, किसी न किसी को एक अच्छी चीज लगती है जो है, ऐसा चीज लगती है जिससे उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। कोई स्पोर्ट्स में, कोई सिंगिंग में, कोई कुछ नहीं तो रनिंग कर रहा है जो है, मतलब कुछ ना कुछ उसका, कोई रीडिंग में, कभी कोई स्पीच देने में मजा आता है। मतलब एक चीज ऐसा सब में भगवान ने क्वालिटी दिया है जो आपको रिलैक्स करती है, राइट जो आपको इन सब चीज़ों से रिलैक्स कर देती है जो है। तो हम लोग में क्या होता है कि जिस दिन कोई ऐसा इंसिडेंट बनता है जिसमें अपना मूड सब खराब ही रहता है, उस दिन हम लोग कोई खाना भी नहीं खा, अच्छा भी नहीं लगता। आप अच्छे पकवान भी रखते तो भी अच्छा नहीं लगेगा। राइट लेकिन जिस दिन सब डिटेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उस दिन पुलिस वाले ये बोले आज चलो बाहर चलते हैं, बढ़िया जो 4 रोटी ज्यादा खाएंगे। तो उस दिन जो पॉजिटिव हार्मोन्स उसमें आते हैं ना, Right. कि सेंस ऑफ मतलब पॉजिटिविटी जो है, राइट तो वो हरदम से एंजॉय करेगा। तो ऐसे हर में एक क्वालिटी होती है। तो सारे लोग अपने हॉबी को परस्यू करते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे करने तो जो है। तो उसमें स्पोर्ट्स, जैसे मेरा पर्सनल देखो तो मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। अरे वाह। तो जब मुझे चांस जब मिलता है, तो जब छुट्टी बोले 2 दिन की मिली तो जाके किसी जंगल में ही जाने का वाह। और वहां जाके फोटोग्राफी करने का। और वो जो मजा आता है, जो फिर उस फोटो को देखना, वो उस क्षण को याद करना, वो बहुत हमें पॉजिटिव फीलिंग देता है। स्पोर्ट्स से मेरी बहुत हॉबी रही, क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, कभी अब यहाँ तो गोल्फ है नहीं, कभी गोल्फ चांस में गोल्फ भी खेल लिया करता था। तो ये सब जो चीज़ें होती है, अच्छा ग्रुप भी बनता है। स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बॉडी भी अपने आप को लगता है फिटनेस है जो है। तो ये सब चीज़ें, कोई रीडिंग किसी को बहुत अच्छा लगती है, कई बार हम लोग, मुझे रीडिंग भी हैबिट है तो मैं रीडिंग भी करता हूँ जो है, जब ट्रेवलिंग में पढ़ लिया कुछ जो है। तो इन सब चीज़ों से जो भी नकारात्मकता है निकल के सकारात्मकता लाने के और अपने आप को फिट रखने के लिए ये अपने हॉबी को भी हम लोग परस्यू सारे पुलिस वाले करते ही रहते हैं। ग्रेट ग्रेट सर, ये बहुत ही एनरिचिंग कॉन्वर्जेशन रहा मेरे लिए। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और एक संतोष के साथ जा रहा हूँ कि जो मैं सालों से सोच रहा था, मेरी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, मेरी बहुत सारी मान्यताएं चेंज हुई। और सर, जो काम आप कर रहे हैं, राइट फ्रॉम माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल, आई सी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवेयर। सर ह्यूज रिस्पेक्ट एंड थैंक यू सो मच कि आप जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, सर जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट हमारे साथ करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू जय, आपके भी जो इतने प्रश्न इतने अच्छे रहे पब्लिक के लिए। और लास्ट में मैं भी कंक्लूड यही करूँगा आपको थैंक्स बोल के कि पुलिस प्रजा के मित्र है और रियली मित्र है। और कभी भी पब्लिक ये ना सोचे जो है कि पुलिस से हम दूर भागे। राइट हमारी तो आप भारतीय पुलिस है पूरे
पूरे राज्यों की पुलिस है कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कितनी अच्छे से रखी हुई है। राइट। तो हम हरदम अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं, जिनके लिए हमें गवर्नमेंट ने बनाया है। तो आप हमें हरदम मित्र समझिएगा, यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।